which we always seeking being chartered accountant. So definitely it's a great opportunity as market is currently giving us only for the long term goals. Thank you, Mr. Bhai. We will resume once the Anil Singh join with us. I request Rikin Bhai that be prepared. He is joining in a minute only. So market is testing the patience. That is what I can realize. Until then, like whatever you are having your position, we need to just hold tight. That is what. So Anil ji is joining in next 7 to 8 minutes. Meanwhile, I request Kushal Loda to be on stage with secretary and vice chairman. So pre-chat session also can be engaging with all our members. Kushal Bhai, we like to understand the social media aspects from your side and whatever perspectives you have. Please join. Normally we will start our ceremony with you. Meanwhile, pre-chat session can be done. So we have Kushal Loda ji here, and I seen him since I was the chairman of Ahmedabad branch, and he called at that time. At that time, sir, I was not knowing what is the power of your presence, but with his names being we just written on the flyer and registration where boom like anything. We got more than 200 to 300 registration of the students in the conference. So on that basis, can you guide us what is the power of Gen Z or a social media basically, sir? Over to you. Sure. Thank you so much for the kind words and very good evening, ladies and gentlemen. This is just a pre-session. We are warming up before the actual session starts. So I'm practicing in terms of how to ask questions to Amit Singh Viji. So this is going to be a warm-up session. But answering your question on power of social media, I think I've realized that after getting into social media, this is something which is going to be the next big thing for all the companies. And अगर मैं मेरी भी बात करूँ तो जब मैंने शुरू किया था YouTube चैनल, Instagram, LinkedIn, तब पता ही नहीं था कि इसमें भी पैसे भी मिल सकते हैं, फेम तो नहीं एक होता है recognition, बट पैसे भी मिल सकते हैं, प्लस इसमें भी मतलब यूनिट इकोनॉमिक्स कैसे होते हैं. तो आइडिया नहीं था जब मैंने शुरू किया कि YouTube से पैसे कैसे मिलते हैं, Instagram से कैसे मिलते हैं. And then I got to know that the biggest of the biggest creators are charging in the range of 25 lakh rupees to 30 lakh rupees for endorsing one brand on their social media, who are having let's say 5 million, 6 million followers on YouTube. तब जाके पता चला that सोशल मीडिया का भी पावर बहुत ज़्यादा है एंड ऑर्गेनिकली जब जेंजीज को रीच करना है तो सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ईजी हो जाता है. एंड आई जस्ट टुक अ सेशन इन दुबई इन नवंबर ऑन लिंक्डइन एंड मैं उसका एग्जांपल देना चाहूँगा कि लिंक्डइन के थ्रू जो अपॉर्चुनिटीज मिलती है, हम सीएस का एक प्रॉब्लम क्या है कि हमें लगता है कि लिंक्डइन पे अगर एक्टिव हो जाएंगे तो लोग बोलेंगे कि ओके क्या कर रहा है, पीपल विल स्टार्ट जजिंग. वी आर लाइक वेरी स्केयर्ड इन टर्म्स ऑफ शोइंग आवरसेल्व्स अप. बट अगर एक लेसन या एक इंस्पिरेशन अगर आप ले सकते हो तो एक वही रहेगा कि विदाउट गेटिंग एनी फियर ऑफ बीइंग जज्ड, लिंक्डइन पे शुरू करना लाइक चालू करना चाहिए कंटेंट बनाना, एंड जस्ट बाय राइटिंग व्हाट यू आर एक्सपर्ट इन एंड शेयरिंग योर स्टोरीज ऑन लिंक्डइन, उससे बहुत इजी हो जाएगा इन ऑर्डर टू लाइक जस्ट स्टार्ट योर कंटेंट जर्नी. एंड आई नो दैट मैंने इतने लोगों को रीच आउट किया लिंक्डइन के थ्रू, जब मुझे जॉब चाहिए था वो भी लिंक्डइन के थ्रू मिला, एंड व्हाटएवर माय एक्सपर्टीज वाज मैंने लिंक्डइन के थ्रू मतलब डिसेमिनेट किया, तो उसके थ्रू बहुत ज्यादा फायदा हुआ. So I think few of the things which have helped me is like YouTube, Insta, LinkedIn presence. If I can just give one advice to all the CAs out there, start creating content on LinkedIn. मत सोचो कि लोग क्या सोचेंगे. Start with a story or start with your personal life, personal journey, and automatically मैं बता रहा हूँ, it will be very easy for you to start getting more opportunities, and at the same time, this is the best way to put yourself out. So LinkedIn के थ्रू स्टार्ट कर सकते हो, ट्विटर एक प्लेटफॉर्म है, देन धीरे धीरे इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ताकि ऑर्गेनिकली लाइक यू कैन रीच टू लाइक अ लॉट ऑफ पीपल. Yeah, and one more question that
how many followers are you having on LinkedIn or Insta or YouTube? So LinkedIn, I have 3,98,500 followers, 1,500 to go for 4 lakh. YouTube is 5,15,122. I just checked it yesterday, and Instagram is 3,62,000 followers right now. So all put together, I think close to 1 million unique followers should be there across all the platforms. And answering his question on monetization, so his question is कि इसमें पैसा कैसे बनता है, which is like the biggest question a lot of people want to know an answer to. तो मैं आपको बताता हूँ, YouTube जो है ना वो पे कैसे करता है. अगर इंडिया में एक फाइनेंस क्रिएटर है जिसको 1000 व्यूज मिलते हैं लॉन्ग फॉर्म वीडियो में. लॉन्ग फॉर्म वीडियो मतलब एक वीडियो जो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का है. शॉर्ट्स एक होता है 30 सेकंड का, एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो होता है 15-20 मिनट का. तो अगर 1000 व्यूज आपको मिलते हैं तो ऑन एन एवरेज YouTube आपको $1.2 देता है, विच इज इक्विवेलेंट टू ₹100 के आसपास. एंड अगर आप एक फैशन या ब्यूटी लाइफस्टाइल क्रिएटर में तो यही नंबर ₹50 से ₹60 होगा. सो अगर आपको लेट्स से 1 मिलियन व्यूज अ मंथ आते हैं YouTube पे, तो 1 मिलियन व्यूज अ मंथ के हिसाब से आपको हर मंथ YouTube आपको ₹1 लाख देगा, assuming that आपका चैनल मोनेटाइजेबल है. So this is how YouTube pays, but you will be surprised to know that only 5% of the income of a content creator is from YouTube. बाकी का जो 95% है ना, इसमें से 88% of the income of a creator is from brand collaborations, brand endorsements, title sponsors, जो brands पैसा देते हैं. तो सबसे ज्यादा पैसा वहाँ पे आता है. And YouTube पे अगर आपको on an average 50,000 views मिलते हैं हर वीडियो पे लॉन्ग फॉर्म, you can charge anywhere between ₹1 lakh to ₹1.5 lakh per video to a brand. सेम नंबर Instagram पे ₹1 per view होगा. अगर आपको 1 लाख व्यूज मिलते हैं Instagram पे तो you can charge ₹1 lakh to ₹1,20,000 on Instagram. सेम नंबर LinkedIn पे 0.5 होगा, which means if you are getting 1 lakh impressions on LinkedIn, आप 40,000 से 50,000 रुपए चार्ज कर सकते हो on LinkedIn. This is how unit economics work in the creator economy. And the best part here is that जैसे जैसे आप वीडियो प्लेटफॉर्म पे आते हो आप चार्जेस बढ़ा सकते हो, because loyal audience ज्यादा होता है आपको. YouTube पे अगर 20 मिनट तक देख रहे हैं, which means they are literally following you for 20 minutes of their life every single day. So सबसे ज्यादा loyal audience YouTube पे होता है. So this is how monetization works. Yeah. So he's asking the way YouTube is paying, Instagram is not paying. So yeah, this is true. Only YouTube, Facebook and Twitter. These are the 3 platforms today in India in social media जो पैसा देते हैं. LinkedIn पैसा नहीं देता, Instagram पैसा नहीं देता, and none of the other social media platforms will give you money. So we cannot be a brand ambassador. Like we are conservative, we are before Gen Z. That is what I can say. So we are basically traditional practitioners, and I can say that we do have the knowledge. So as you have rightly suggested, if I can put that knowledge on this LinkedIn or somewhere, then definitely I can organically increase my followers, and then I can start building the videos, and then I can grow my audience to YouTube or Insta. Yeah, I would say that you can definitely become brand ambassadors of your own company. तो आपकी जो कंपनी है उसके आप ब्रांड एम्बेसडर तो डेफिनेटली बन सकते हो और बनना भी चाहिए. एंड द बेस्ट वे टू बिकम ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ योर ओन कंपनी इज बाय पुटिंग योरसेल्व्स आउट ऑन सोशल मीडिया, बी इट लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम. आई वुडंट रिकमेंड YouTube टू स्टार्ट ऑफ विद बिकॉज़ YouTube बहुत ज्यादा एफर्ट लेता है, बट लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे इफ यू पुट आउट योरसेल्फ एंड एक्सप्लेन व्हाटएवर यू नो, आई थिंक बहुत बड़ा गैप है. अभी प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको सबको सच में बताऊं तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आ गए इंडस्ट्री में, बट दे डोंट हैव द रेलेवेंट क्वालिफिकेशन, दे डोंट हैव द रेलेवेंट एक्सपर्टीज. तो बहुत कंटेंट उनको लोगों को हंसाना आता है. सो दैट्स व्हाई लॉट ऑफ पीपल हैव फॉलोअर्स. अगेन नो ऑफेंस अगेंस्ट एनीवन ऑफ देम, बट लॉट ऑफ पीपल नो हाउ टू एंगेज विद द ऑडियंस, हाउ टू मेक पीपल लाफ, एंड दैट्स व्हाई दे हैव फॉलोअर्स. इंडिया में सीएस में इतना ज्यादा कॉम्पिटेंस है और इतना ज्यादा कैलिबर है, but we are just not putting ourselves out. So I feel that there is a need of quality content creators when it comes to finance, tax planning, insurance, and who better than chartered accountants would be those content creators. So I would definitely recommend that quality creators की कमी है तो please content बनाओ and please educate करो audience को. And as you have said rightly, we need to have a financial literacy amongst the businesses, because हम हमारे clients के लिए और सबके लिए तो करते ही, but this is also required that we literate other people, because due to these cyber frauds and those digital arrest cases which are coming, if we can disseminate our knowledge, then it will be beneficial to the public at large.
and that is what our role so far as the chartered accountant is concerned, and it is not amounting to advertisement as well. So I guess that to put at our organization at right place, it's very much necessary that we disseminate whatever knowledge we are having, and with that we can be on the social media platform. That should be the strategy, right? Yeah, I'll give you a few examples of CAs who are doing extremely well in content. One CA is named CA Sarthak Ahuja, who's based in Gurgaon. I'm sure you must have come across his content on Instagram. So he runs an investment bank, and he basically creates content. He has close to 3 million followers on Instagram, and he doesn't edit his own videos. He basically just puts it out on social media, and he gets a lot of deals on his investment banking business from Instagram itself. So people DM him that I'm looking to raise capital, can you please help me with this? And then he just converts the deals from his Instagram DMs, and that is what is working really well for him. I would just recommend that whatever is your expertise, just start putting yourselves out, or just start explaining to the audience. You never know how that can turn into a big opportunity, but not going with this mindset that I want to gain something out of it, but just by going with the mindset that I want to teach, I want to educate the audience. If that is the mindset, then it becomes very easy for you to attract more opportunities. And of course, your profession you can able to disseminate to the others as well, because we can't showcase so far as advertisement is concerned or something like that. Yes, I think we go to you. So the new code of ethics, which is applicable from 1/4/26, it has laid down certain process wherein for non-attestation work you can do advertisement with all the guidelines given by the ethical standard board. So it is not completely no now, but in a way there is a relaxation that for non-attestation services you can do it by push mode as well. Otherwise, pull mode on your website and pull mode is allowed. But the revised guidelines, which would be out soon and would be applicable from 1/4/26. And again, we can't be YouTubers because practicing chartered accountants cannot do that because that would be a business. But others can do that. Yeah, actually, I run this as a full-time business only because now we are 20 people across all these platforms, and there's a process for each and everything. We are uploading 3 videos on YouTube every week, Tuesday, Thursday, Saturday, and 1 reel a day, 6 reels a day on separate Instagram handle, and all of that. So it's like a proper content factory which is being developed, and this factory is just helping us to put out ourselves on all the social media platforms. So I'm running it as a business, but doesn't mean that you need to do that. But just if you can upload some sort of content on LinkedIn, that will be helpful. With huge round of applause, we would welcome our expert speaker, C. Anand Singh sir. We request Chairman sir and other dignitaries to escort him on the dais. अनिल सिंह एक ऐसा नाम जिस पर भरोसा करते हैं करोड़ों लोग। एक मंझे हुए बिजनेस जर्नलिस्ट होने के साथ साथ अनिल सिंह भी सीए और सीएस भी हैं और रुपए पैसे सरकारी खजाने आर्थिक नीतियों के साथ साथ बाजार के हर एक दांव पेच को बखूबी समझते हैं। जब बात ट्रेडर्स और निवेशकों के हक की हो तो दिल से निकलती है जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह की आवाज। ये कुछ मारते ही नहीं, मारिए टैक्स कर स्लैश द कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स। बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है एनएससी से। लगातार 3 दिन तक आपके डेटा अपलोड नहीं हो रहे, कैसे मार्केट चला है? ये सब डरते क्यों है एक्सचेंज से? एक्सचेंज को आप लोग फीस दे रहे हैं, अगर एक्सचेंज आपको सर्टिफिकेट दे रहा है तो कोई ऐसा नहीं कर रहा आपको। मोदी जी का भी एक वोट है, मेरा भी एक वोट है, हर एक आदमी का डेमोक्रेसी में एक वोट है। तो फिर इन्वेस्टमेंट के मामले में बड़ा इन्वेस्टमेंट बड़ा क्यों, छोटा इन्वेस्टमेंट छोटा क्यों? सीसीएन जैसी बड़ी दिग्गज कंपनी से एक बड़ी कंपनी, आप हिंदी के दर्शकों को, रिटेल इन्वेस्टर को दूसरे दर्जे का समझकर चलेंगे तो ये नहीं चलेगा। बिजनेस के इतिहास में आज सबसे बड़ा खुलासा होने जा रहा है कि मैंने की कमाई को लूटने का धंधा जो चल रहा है।
यहाँ छोटे लोन देने वाले लोगों की गुंडागर्दी लॉकडाउन के सभी नियमों और निर्देशों की धज्जियां उड़ा रही है। ऑपरेशन डीमैट का डीमैट अकाउंट जहाँ बिना किसी खून खराबे और हथियार का इस्तेमाल किए ये लुटेरे आपके जीवन भर की गाड़ी कमाई कुछ ही मिनटों में साफ कर देते हैं। निवेशकों के फंसे हुए पैसे तुरंत लेते हैं। और अगर इनके लिए आप लड़ते तो कोई आप इन पर ऐसा नहीं करेंगे, इनका हक है और ये करने की जरूरत है। अनिल सिंघवी के स्टाइल ने बिजनेस जर्नलिज्म का चेहरा ही बदल दिया। बिजनेस और इकोनॉमी की बातें सिर्फ सूट बूट पहनने वाले नीश क्लास के लोग ही समझते हैं। ऐसी सोच को बदला है अनिल सिंघवी ने। कठिन से कठिन शब्दों को आसान भाषा में समझाकर न सिर्फ आम लोगों के घर तक पहुंचाया बिजनेस चैनल्स को, बल्कि दर्शकों को एजुकेट और एम्पावर करने का भी फैसला किया। मुद्दों के चक्रव्यूह को भेदने वाला एक भरोसेमंद नाम है अनिल सिंघवी। भाषण और दावों से भरे अपनी साफ छवि से करोड़ों लोगों के दिलों में खास जगह बनाई है अनिल सिंघवी ने। और यही वजह है कि लोगों के दिलों में उन्हें सिर्फ एक दिग्गज एंकर या एडिटर ही नहीं, बल्कि एक दोस्त और फैमिली मेंबर का दर्जा मिला है। और इसीलिए अनिल सिंघवी की एक्सटेंडेड फैमिली कहीं ज्यादा बड़ी है। तो बेस्ट एंकर यार, हिंदी में इतना अच्छा कोई करने वाला है नहीं। आप आपको आनंद का टाइम तो कैमरा दे दो तो देखो कोई क्या कर रहे हैं, वो पत्थरों से हीरा निकाल दो। अनिल जी को सिर्फ वो टीवी में देखा करते थे, सुना करते थे, और आज हम उनके साथ बैठ के बात कर रहे हैं। हमारे लिए कंपनी और आपसे बात करने में दोनों में प्राइड फील होता है। रवि आप बहुत ही सही है और मैं कहता हूँ कि कॉमन रिटेल इन्वेस्टर है उसके बिहार पे आप बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत अच्छी सेवा करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। कई इंटरव्यू के लिए मैं हफ्ते में 2 बार हिंदी ट्यूशन लेता हूँ। इक्विटी मार्केट, शेयर मार्केट, कैपिटल मार्केट बोलो, इसमें लोग आपको भगवान की तरह मानते हैं। जब जीवन में एक सम्मान की, रेस्पेक्ट की लाइफ दे रहे हैं, तो इसमें अनिल सिंघवी जी की सलाह है। Before we start the proceeding, I would request everyone to rise for ICA. Dignitaries on the dais, our expert speaker today, CA Anil Singhvi sir, Chairman of the largest region, WIRC, CA Saurabh Ajmera ji, Moderator for the session, CA Kushal Lodha ji, Secretary WIRC, CA Bishan Shah, Treasurer WIRC, CA Rakesh Shah, dignitaries of the dais, all the regional council members, dear friends and dear members, on behalf of Institute of Chartered Accountants of India, Western India Regional Council, it is my privilege to welcome our distinguished guests and speakers and respected members to this special program, Discussion on Capital Markets. Capital markets today are one of the most powerful drivers of economic growth, and for professionals like us, staying connected with their evolving trend and insight is extremely important. We are truly honored to have with us a very distinguished personality in form of CA Anil Singhvi sir, who has shaped the way of millions of investors to understand the capital markets.
To formally begin the proceedings, I would request our chairperson for his opening remarks. Thank you, Rikin Bhai. At the outset, I'd like to welcome each one of you in this discussion on capital market, and we have CA Anil Singh Ji, the stalwart of this particular topic. Let's welcome with a big round of applause. We also have with us moderator and social media influencer, I can say my younger brother only, CA Kushal Loda. Let's welcome with a big round of applause. Dignitaries on the dais, Vice Chairman Ritin Patel, Secretary Bishan Shah, Treasurer Rakesh Bhai, and then off the dais, my council colleague, Sweta Madam, Kamlesh Sabuji, Vijender Jain, Fadil Shah, Jinal Madam, Jitin Saglani Ji, Sanjay Nikam, and Vikasa Chairperson, Rajesh Agarwal Ji, and we also have a presence of past Chairman Opi Kanungo Sir. Welcome Sir. So this is really a wonderful evening, I can say, where we are going to discuss about the capital market in detail with Anil Singh Ji, as well as we will have an opportunity after this session to interact with our top leadership, that is our torch bearer. And friends, whenever we are planning to have some capital market session, we always keep in mind there is a multiple opportunity. One is investing, one is consulting. So capital market is an area where we can have both the opportunity. Today, if we talk about in the situation of India where we are, this is the one of the area where we can have various career opportunity, because the way the numbers of AIF is getting increased, the way number of IPOs is getting increased, each and every area will have a separate opportunity. Because if you talk about IPO, there are multiple opportunity for chartered accountant, be in due diligence, valuation, certification, restatement, there are various opportunities. Then investing opportunities also lies when we can have a stake in terms of pre-IPO or consulting part. Similarly in AIF also, once the AIF is created with SEBI, there are 4 minimum entities which need to be taken care for chartered accountants, and there are various other certification and valuation areas where chartered accountant can flourish. And I like to highlight that out of almost more than 1200 AIF, 800 and more are from Mumbai only. So again, we have a great opportunity in terms of geography also when we talk about the capital market. I will not take much of time, as we are already delayed in our schedule, and we do have our torchbearer also, where also I will get an opportunity to interact with you. I just want to say 2 lines that we are from a background where we should have a fundamental analysis first in mind, then we should have an investment. Then I like to say 2 lines that जिंदगी भर गालिब मैं यही भूल करता रहा, जिंदगी भर गालिब मैं यही भूल करता रहा, धूल रिसर्च पे थी और मैं पोर्टफोलियो साफ करता रहा. So please take care for your investing also, and we do have stalwarts of the capital market with us. So I'll not take much of time. Thank you for joining here. Thank you. Thank you so much, Chairman Sir, for your words of wisdom. Before I invite Sir and Moderator Sir to take charge of the session, I would request our Treasurer, CA Rakesh Shah, to formally introduce our faculty, and then followed by Rajesh Ji to introduce Kushal Sir. Though both of them needs no introduction, but as part of our formal process, please. Good afternoon, friends. So, as you know, I stand before you to introduce Mr. Anilji Sanghvi. Rikin has already said he doesn't require introduction, but still as a formality, I'm here. So Anilji is the managing editor of G Business since April 2018. G Business is India's leading business news channel under G Media Corporation, widely known for his insightful and investor-focused stock market guidance. He's a commerce graduate, chartered accountant, company secretary, multiple degrees. Qualified in 1993, he's having 37-year plus diverse experience across media, capital market, financial services.
He's previously served as executive editor at CNBC Awaaz for more than 13 years. He established himself as a prominent voice in the business journalism and market analysis. He is also recipient of several prestigious honors, including Best Business Anchor in 2017 by India Bullion and Jewelers Association. Also, he is having National Television Award 2022 and Transformation Leader for the year 2023. He also has been awarded for investor education and financial inclusion in the presence of Ramnath Kovind, ex-President of India, and also honored with the President's Scott Award in 1987 by Mr. R. Venkataraman, again ex-President of India. So Anilji Sanghvi, welcome sir, welcome to the WRC. Just to bring to your kind attention that stage as of now is occupied by multiple RVGN. So thank you very much. Good evening, friends. Dignitaries on the dais, myself C.A. Rajesh Agrawal, Chairman Vikasa. I just introduced today's coordinator of the session, Kushal Lodha. Ladies and gentlemen, as we have discussed, because of his social media presence, he does not have any need formal introduction. But as a protocol, I just introduce Kushal. His widely acclaimed podcast Conversation with Kushal, followed by more than 1.5 million people across social media. He is the rank holder chartered accountant with all India ranks at all levels, a world rank holder in ACCA. He has cleared all levels of CFA, distinguished qualification, sir. He is the best-seller author of 2 books, Acing CA and Unlocking Unicorn Secrets, the latter bringing together insights from more than 20 Indian unicorn founders. In recognition of this remarkable digital influence, he has named among Forbes India's top 100 digital creators and honored with the title Most Influential Content Marketing Professional by the World Marketing Congress. He was also recognized as LinkedIn Top Voice in 2022 on LinkedIn. He has also delivered talks and workshops at more than 100 universities and corporates. His insights have been featured on leading platforms such as ET, NDTV, Economics Times, Business Today, Money Control. I like to say, मेहनत से जिसने मुकाम बनाया है, ज्ञान से जिसने लाखों को रास्ता दिखाया है, सफलता को बस उसका परिचय है जिसके सपनों को सब कर दिखाया है. Ladies and gentlemen, please join me in extending a very warm welcome to my friend Kushal Lodha. Thank you. As a token of our love and appreciation, I would request Chairman Sir and dignitaries on the dais to welcome both our faculties with a memento. Stage is yours. We would be listening to you carefully from the first row.
A very good evening, ladies and gentlemen. It's an absolute honor for me to host this session and be a moderator of this session. I've watched Anil Singhvi sir on television multiple times. I've watched him on social media multiple times on YouTube, Instagram. And today I'm getting an opportunity to host him. And I remember, so I'm also from RVG Educational Foundation, the same hostel where he has also stayed back in the 90s. And I remember that in my hostel days, he was coming as a chief guest, and all of us, like, we were so happy and we were so excited that, okay, we also want to click a photo. Unfortunately, that day I didn't get an opportunity to click a photo with him, but today I am proudly saying that, okay, I'm getting an opportunity to host the session where I am going to ask him the questions as well. So for those of you who follow me on social media, I usually introduce my guests using some rhymes, creative, witty rhymes. So before we start the session, I just have a few rhymes for Anil Singhvi sir. इनकी बोल और इनके वचन बहुत सुपर ही है, चाहे इंसान हो या निफ्टी, जाना दोनों को ऊपर ही है. जिन्होंने स्टॉक मार्केट में कर रखा है किल, स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो आएगा बहुत बड़ा एफएनओ का बिल. जब इनकी शादी हुई थी तब टूटे थे काफी लड़कियों के दिल. दोस्तों, लेट्स वेलकम वन एंड ओनली मिस्टर सिंघवी अनिल. Thank you so much, sir, for being a part of this. The first question is very simple. I've seen your interviews on television and you ask like legendary investors on television about their portfolio, about their views, and I'm sure ये आपको बहुत बार बहुत लोगों ने पूछा होगा ये सवाल. But एक सवाल जो कम लोगों ने पूछा होगा is about your own personal portfolio and asset allocation. तो आपका at present, मैं अब in 2026 आपका personal portfolio में क्या asset allocation है, and which are some asset classes that you are bullish on and why? Thank you, Kushal, thank you for your kind words and introduction. आप सबको नमस्कार, गुड इवनिंग. सौरभ जी और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सी इंस्टीट्यूट के कार्यक्रम में बुलाने के लिए. और हमेशा से इंस्टीट्यूट के कार्यक्रम में आना बड़ा अच्छा लगता है. ऐसा लगता है कि अपने भाइयों से मिलने आ रहा हूँ, तो बड़ी एक होमली फीलिंग आती है. और आप सब लोग आए हैं वीकडे में सुनने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. देखिए, जो आपने सवाल पूछा कि मेरा एसेट एलोकेशन क्या है, मैं अपने एसेट एलोकेशन के बारे में बताऊं उससे पहले एक चीज़ बताना चाहता हूं, और वो ये बहुत ज़रूरी है कि मैं जहां भी जाता हूं लोग मुझे ये ज़रूर पूछते हैं कि सर कौन सा शेयर लें. अगर समझो मैंने किसी ने एक दो शेयर बता दिए तो फिर वो ये पूछते हैं कि अच्छा आपने कौन सा ले रखा है. मतलब अगर मैंने जो ले रखा है वही ले लिया तो बस फिर तो परफेक्ट है. पॉइंट ये है कुशल कि सबके लिए एसेट एलोकेशन बहुत अलग अलग तरीके से काम करता है. मैं लाइफ में जिस स्टेज पे आ चुका हूँ, आई हैव क्रॉस्ड 55 years ऑफ माई एज. माई बोथ द सन्स आर वर्किंग, अर्निंग, वेल एजुकेटेड. एक तो मुझे बताते हुए खुशी कि अभी साल भर पहले ही छोटा वाला मेरा बेटा भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बना है. तो इसलिए मेरा पोर्टफोलियो एलोकेशन किसी और के पोर्टफोलियो एलोकेशन से बहुत डिफरेंट हो सकता है. बट हाँ, जो शायद आप सब लोग जानना चाहते हैं वो ये कि अनिल जी ने कितने पैसे इक्विटी में लगा रखे हैं, राइट. सो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि एक, मैं जनरली कभी भी इक्विटी मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं करता, डायरेक्टली मैं स्टॉक्स नहीं खरीदता. और उसका रीज़न ये है कि इट्स नॉट दैट कि आई कैन नॉट डू इट, आई एम अलाउड टू डू इट एंड आई यूज्ड टू डू इट बिफोर ज्वाइनिंग मीडिया. बट as you know, those who follow me on television, that I day in day out I speak about so many stocks, and it's very difficult to give disclaimers whether I hold this stock or not, whether my family members hold this stock or not, and what is my financial interest in talking and recommending about that particular stock. So what I did, I stopped investing into stocks directly, and I started investing through mutual funds. So I got two things very very positively for me. One is like, of course, पीस ऑफ माइंड. लाइक, एंड आपने देखा होगा कई बार मार्केट गिर रहा हो बढ़ रहा हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. ऑफ कोर्स बढ़ता हो तो सबको अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोगों में से ज़्यादातर लोग मार्केट बढ़ते हुए मार्केट में पैसा बनाते हैं. लेकिन मुझे कई लोग ये कहते हुए कुशल कि मार्केट गिर रहा होता तभी आपको स्ट्रेस क्यों नहीं आता, कभी आप टेंशन में नहीं दिखते हैं, उल्टा ज़्यादा हंसी मजाक करते हैं. तो मैं कहता हूँ कि देखिए मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरी कोई पोजीशन नहीं होती, मेरा कोई डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है. अगर यही समझो कि मैंने L&T में पैसा लगाया, L&T 6%, 8%, 10% गिरा है, मैं शो क्या करूँगा, मेरे चेहरे पे दिखेगा. और आपको तो पता है मैं बहुत इमोशंस के साथ शो करता हूँ. आई नेवर हाइड माई इमोशंस. जो मुझे लगता है स्क्रीन पे मैं बोलता हूँ. सो मेरा पॉइंट सिंपल है कि
investing into mutual fund is one, like you need not bother about your stock in minute to minute basis because आप लोग तो फिर भी कुछ और काम करते होंगे, कुछ तो ऐसा समय होगा 9 से 3:30 के बीच में जब आप मार्केट ट्रैक नहीं करते होंगे. मेरे लिए तो हर मिनट करना है, और अगर हर मिनट मुझे वही काम करना है और अगर वही स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फोकस ऑन योर वर्क. सो दैट्स द रीजन. एंड सेकेंडली, वन मोर थिंग आई हैव ऑब्जर्व्ड इज लाइक, of course I can recommend, I can create a portfolio, I do it for many of my viewers, but कई बार ऐसा है डॉक्टर अपना इलाज खुद नहीं कर पाता, राइट. सो मैं ये सोचता हूँ कि अगर कोई एक नीलेश शाह हैं जो हमारे सीए गोल्ड मेडलिस्ट हैं, कोई नवनीत मनोज जैसे हैं, कोई प्रशांत जैन है, कोई सुनील सिंघानिया हैं, इतने बढ़िया इतने बड़े दिग्गज फंड मैनेजर्स हैं जो हमारी फ्रेटर्निटी के हमारे बड़े भाई हैं, और अगर वो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं तो 1-1.5% जो फीस म्यूचुअल फंड्स में लगती है, क्यों उस फीस को बचाना है? वो फीस देकर बेहतर है कि हम आउटसोर्सिंग करें. सो मैं आउटसोर्सिंग में ज़्यादा बिलीव करता हूँ. सो मेरा सारा का सारा इन्वेस्टमेंट इक्विटी में जो भी है वो म्यूचुअल फंड्स के जरिए. तो आपका इसमें 100% एलोकेशन वुड बी ना राइट नहीं क्या 100%? तो कितना डेट? 100% एलोकेशन कभी भी किसी भी एक एसेट क्लास में होता भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए. लाइक एन ओबीडियंट हस्बैंड, लाइक ऑल ऑफ यू, मैंने भी गोल्ड सिल्वर में पैसा, गोल्ड सिल्वर तो नहीं लेकिन हाँ गोल्ड में मेरा भी इन्वेस्टमेंट है. प्रॉपर्टी में हमारा सबका होता ही है. आप मारवाड़ी हैं, मैं मारवाड़ी, और ज़्यादातर मारवाड़ी गुजराती लोग जितने भी हैं, और या फिर नहीं भी हैं, लेकिन सबका एक एस्पिरेशन तो ये होता ही कि मेरा अपना घर हो. तो वो घर का इन्वेस्टमेंट आपका प्रॉपर्टी का होता ही है, और छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में होता ही है. बट पॉइंट ये है कि जो आपके डेड इन्वेस्टमेंट है वो अलग है. बट अपार्ट फ्रॉम डेड इन्वेस्टमेंट यू हैव टू हैव सम बैलेंस इन इक्विटी वर्सेस debt. So what I do, how do I construct my portfolio is I keep property and gold investment out of my allocation because that is not touchable kind of. Property है, रहना है घर में, तो वो आपको पता है वो रहना ही है, तो आप उसमें allocation मानो मत मानो फ़र्क नहीं पड़ता. मैं थोड़ा सा अलग अप्रोच से आता हूँ. गोल्ड आपको पता है आप बेचेंगे नहीं किसी न किसी रीजन से, तो बचा आपका जो पैसा है उसमें what I do, so I invest mostly into वन whatever my basic need is. से सपोज मुझे घर का खर्च चलाने के लिए जो भी पैसा चाहिए, मैं 3 से 6 महीने का पैसा लिक्विड फंड में रखता हूँ मोस्टली. सो मेरा जितना भी समझिए मेरा महीने का 1.5 लाख 2 लाख रुपए अगर खर्चा है तो मेरा 3 से 6 महीने का पैसा मेरा लिक्विड फंड में रहेगा. बाकी पैसा मेरा डेट फंड में 3 से 5 साल की व्यू से पार्क होता है, और वो पैसा मोटा मोटी आप समझिए 20 से 30% होगा. बाकी 60 से 70% पैसा मोस्टली इक्विटी स्कीम्स में इस तरह से इन्वेस्ट होता है. उसमें कुछ आर्बिट्राज फंड्स होते हैं जो इक्विटी और डेट दोनों का काम कर देते हैं, और बाकी कुछ इक्विटी फंड्स होते हैं. दिस इज़ हाउ आई एलोकेट माई पोर्टफोलियो. सो आपने बताया दैट थोड़ा प्रोपोर्शन गोल्ड एंड सिल्वर में भी आपने इन्वेस्ट किया है, एंड अभी जो अनसर्टनिटी चल रही है, US ईरान का वॉर जो चल रहा है, एंड इसके ऊपर से जियोपॉलिटिकल में अनसर्टनिटी है, डोनाल्ड ट्रम्प के काफ़ी सारे डिसीजन है विच इम्पैक्ट द इंडियन स्टॉक मार्केट्स एज वेल. तो आपका क्या व्यू है ऑन गोल्ड एंड सिल्वर, एंड वुड यू रिकमेंड अ यंग रिटेल इन्वेस्टर कि अभी गोल्ड एंड सिल्वर एक सेफ बेट या सेफ हेज है, या अभी भी वॉलेटाइल हो गया? सी क्या होता है कि हमारी प्रॉब्लम दूसरी, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें गोल्ड सिल्वर में पैसा लगाना चाहिए, इक्विटी में लगाना चाहिए. हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम किसी एक एसेट क्लास पे बहुत बायस हो जाते हैं. 1 साल 1.5 साल पहले किसी को गोल्ड नहीं खरीदना था, राइट. सबको इक्विटी चाहिए, 100% इक्विटी. आज किसी को गोल्ड नहीं, इक्विटी नहीं खरीदी, सबको गोल्ड चाहिए. अब मैं आपको कल का नंबर बताता हूँ. कल म्यूचुअल फंड के फरवरी महीने के नंबर्स आए. जनवरी मंथ में हाईएस्ट इनफ्लो आया है गोल्ड ETF में. कितना? 25,000 करोड़ रुपीस इन 1 मंथ. 25,000 करोड़ गोल्ड ETF में आया एक ही महीने में. और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि म्यूचुअल फंड में जो पैसा आता है हर महीने, पहली बार कि इक्विटी से ज़्यादा पैसा गोल्ड में आया है. ओके, कुछ 500 करोड़ ज़्यादा आया था. इस बार मालूम है क्या हुआ? वो 25,000 करोड़ का घट के सिर्फ 4,000 करोड़ रह गया. एक महीने गोल्ड ने रिटर्न नहीं दिया. यह हाल है. चलो वो छोड़िए, सिल्वर का बताता हूँ. जनवरी के महीने में सिल्वर ETF में आए थे 9,000 करोड़, 9,500 करोड़. एनी गेसेस? इस महीने फरवरी के महीने में क्या हुआ? सिल्वर के में से 700 करोड़ रुपए निकल गए. आउटफ्लो है, इनफ्लो भी नहीं है. ये तो हमारा एसेट एलोकेशन है. सो पॉइंट क्या है, हम एसेट एलोकेशन पे जाते ही नहीं है. हम ये देखते हैं सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ बनेगा, वही हमारा एसेट एलोकेशन है.
अच्छा गोल्ड अच्छा लग रहा है, जितने पैसे सारे गोल्ड में डाल दो। इक्विटी अच्छी लग रही है, जितने पैसे सारे इक्विटी में डाल दो। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। अपार्ट फ्रॉम दैट एलोकेशन, नाउ लेट्स कम टू योर क्वेश्चन कि सोना चांदी खरीदना चाहिए अभी या और बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो पहली चीज ये, गोल्ड के फेवर में क्या चीजें हैं वो समझ लीजिए। गोल्ड के फेवर में एक ही चीज है और वो है ट्रंप। जब तक ये भाई साहब कुर्सी पे बैठे हैं, ये कुछ न कुछ बोलेंगे और कुछ न कुछ ऐसा करेंगे जिससे कभी न कभी बीच बीच में गोल्ड उछाल मारेगा, तेजी करेगा। ठीक है, ये होने वाला है, क्योंकि वो आदमी तब से लड़ रहा है जब से उसको नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला। मतलब वो लड़ झगड़ के वो पीस प्राइज लेना चाहता है, उसका कुछ नहीं कर सकते आप। सो पॉइंट सिंपल ये है, वो तो नोबेल वालों का भला हो, नहीं दिया हो तो 3 महीने बाद क्या मुंह दिखाते थे कि यही आदमी जाके अटैक कर रहा है ईरान पे, राइट। सो कम से कम कहीं तो सेंसिबल लोग हैं। बट पॉइंट ये है कि जब तक ये है, ये लड़ेंगे जरूर और कुछ न कुछ ऐसा करेंगे जिससे गोल्ड के दाम ज़्यादा घटेंगे नहीं। सो ये गोल्ड के फेवर में जाता है। गोल्ड के अगेंस्ट में क्या जाता है? गोल्ड के अगेंस्ट में एक ही चीज़ जाती है और वो है क्या है? ट्रंप। फेवर में भी ट्रंप है, अगेंस्ट में भी ट्रंप है। ट्रंप क्यों है आप समझिए इसको। प्रॉब्लम ये कि ट्रंप की ये सारी हरकतों की वजह से दुनिया में कोई भी सेंट्रल बैंक, कोई भी गवर्नमेंट डॉलर में अपना एक्सेस एक्सपोजर नहीं रखना चाहती। एक ज़माना था, कभी भी दुनिया भर में कोई टेंशन हो जाए, कोई प्रेशर आ जाए, या तो गोल्ड खरीद लीजिए, या जनरली लोग डॉलर खरीदते थे कि डॉलर अपने पास होना चाहिए, क्योंकि मुसीबत में डॉलर से आप कुछ भी खरीद सकते हैं, राइट। अब ये हो गया कि डॉलर को छोड़ के सारे सेंट्रल बैंक्स अपने गोल्ड रिजर्व बना रहे। लास्ट ईयर हमारे आरबीआई ने 90 टन गोल्ड खरीदा था, राइट। तो सबको गोल्ड चाहिए। सो इसलिए चाहिए कि इसलिए आप देखिए 110 के लेवल से डॉलर इंडेक्स घटा के 97 98 तक आ गया। तो सबका डॉलर पे कॉन्फिडेंस कम हो गया कि डॉलर, यूएस की इकोनॉमी बड़ी डेट में है, ट्रम्प बड़े अनप्रेडिक्टेबल है, तो हमारे डॉलर के अलावा हमारे पास और कुछ भी होना चाहिए कि इस आदमी का भरोसा नहीं, कभी कुछ ऐसा कर दे इकोनॉमी यूएस की हिल जाए, डर जाए, पूरा ग्लोबल मार्केट खराब हो जाए। तो इस चक्कर में लोग गोल्ड लेना चाहते हैं। अब ये बात ट्रंप को पसंद नहीं आती। ट्रंप को कमज़ोर डॉलर पसंद नहीं है और वो सारी चीज़ें करेंगे जो डॉलर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज़रूरी है। वो अगर डॉलर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ब्राज़ील को धमकाना है, धमकाएंगे, हमें धमकाएंगे, रशिया को धमकाना है। अगर ब्रिक्स ने ये डिसाइड किया कि हम एक ऐसी करेंसी बनाएंगे जो इनके अगेंस्ट में होगी, वो छोड़ेंगे नहीं। सो आई थिंक मेरा ये मानना है कि इन दोनों चीज़ों को देखते हुए सिंपल सी चीज़ ये है कि आपको गोल्ड में एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करना है। कुछ बढ़िया और बड़ा फॉल आ जाए, इफ़ यू आस्क मी, आई वुड प्रीफर कि अगर आपका 1,25,000 1,30,000 के आसपास कभी मिले तो एक आइडियल एंट्री पॉइंट हो सकता है। कुछ आप बड़े एग्रेसिव और कुछ SIP की तरह गोल्ड लेना चाहते हैं तो 1,40,000 से शुरू कर दें, हर 10,000 पे मैं थोड़ा थोड़ा गोल्ड ले लूँगा, दैट इज़ बेस्ट वे। सिल्वर लेना है, सिल्वर तो और भी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, गोल्ड से ज़्यादा हाईली वोलेटाइल है। मतलब आप इतना ब्लड प्रेशर झेल सकते हैं तो अच्छी बात है। इफ़ यू आस्क मी, आई वुड बी कंफर्टेबल बाइंग सिल्वर अराउंड 2,25,000, नॉट बियॉन्ड दैट। सो मेरे ख्याल से जो गोल्ड और सिल्वर के टॉप देखे आपने, वो जल्दी से वापस नहीं आएंगे, उसमें वक्त लगेगा। और ऐसा भी नहीं कि गोल्ड वापस से पुराने लोज जहाँ से शुरू हुआ कि 70-80 हज़ार से गोल्ड शुरू हुआ है, चांदी 60-70 हज़ार से शुरू हुई, वहाँ भी आ जाएगी। कई बार लोग ये भी सोचते हैं कि $10 की $50 हुई चांदी, 50 से वापस 10 होगी, वैसा भी नहीं होने वाला है। सो ये 2 साल, बियॉन्ड 2 ईयर्स, आप पूछते कि ट्रंप के बाद क्या, तो आसान है जवाब देना, लेकिन ये 2 साल में वॉलेटाइल रहेगा। और उस वॉलेटिलिटी में आपको सिंपल एक ही फॉर्मूला लगाना है, जब भी किसी वजह से एक साथ खराब होने लगे आपको थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सर अगर मैं इक्विटी मार्केट्स की भी बात करूँ तो अभी आई एम श्योर आपने पढ़ा होगा दैट स्टेट ऑफ हॉर्मोज जो है लाइक ईरान का, वहाँ पर अभी ऑयल और गैस का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है एंड वहाँ पर बेसिकली उन्होंने अभी कंट्रोल लगा दिया, बिकॉज ऑफ विच क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे। लास्ट वीक सेंसेक्स क्रैश हुआ था, प्लस नेचुरल गैस के प्राइसेस भी बहुत बढ़ गए थे। इन सब का इक्विटी मार्केट्स में क्या इम्पैक्ट होगा एंड एट प्रेजेंट ये लेवल्स पे आपको लगता है कि इक्विटी मार्केट्स में अभी SIP करना चाहिए लोगों ने या लमसम कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके लिए क्या रिकमेंडेशन होगा? सो पहली चीज़ तो ये कि लड़ाई तो रशिया यूक्रेन में भी हुई थी, इजराइल हमास में भी हुई थी, हम इतना परेशान नहीं हुए, हम इतना गिरे नहीं, राइट। अब क्या बदला है, व्हाट इज़ डिफरेंट दिस टाइम? ओके, सो दिस टाइम ओनली थिंग डिफरेंट इज दिस वॉर इज अफेक्टिंग क्रूड प्राइसेस।
और हमें और कुछ फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया में। देखो ये दुनिया कैसी है, इतनी बड़ी है, इतने सारे देश हैं, आप में हम में से कई सारे लोग जॉइंट फैमिली में रहे हैं, वो अपना होता है ना HUF, जहाँ मेरे से 2 जनरेशन पहले फैमिली में 8-8, 10-10 बच्चे होते थे, वो सब साथ में रहते थे माँ बाप के, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे। तो किसी भी घर में आप चले जाएं तो कम से कम 50-60 आपको मिलेंगे पूरे, वो सब साथ में रहते हैं। और वो जब 50-60 एक साथ रहते हैं तो 2-3 बहुएँ लड़ेगी, 8-10 बच्चे रोज़ लड़ेंगे, 1-2 भाइयों में भी कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होगा, इसने कम काम किया, मैंने ज़्यादा किया। तो ये पूरी दुनिया है ना, इस जस्ट लाइक HUF। इतनी बड़ी दुनिया में कोई न कोई 2-4 देश हमेशा लड़ते रहेंगे, इनकी स्ट्रेस लेने का नहीं, लड़ेंगे पक्का, ये नहीं लड़ेंगे तो कोई और लड़ेगा, कोई और नहीं तो कोई और लड़ेगा। हमें सिर्फ ये देखना है कि किसके लड़ने से हम पे इम्पैक्ट आता है। सो ईरान में ऐसा क्या है जो हम पे इम्पैक्ट आता है? तो सिंपल ये कि हमारा जो ऑयल आता है गल्फ कंट्रीज से, पहली चीज़ तो ये हमारे देश की जितनी ऑयल की ज़रूरत है 85% हम इंपोर्ट करते हैं। 85 में से 50-55% हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ट्रांसपोर्ट होकर आता है, ठीक है। और वो जैसे अगर बंद होती है तो ऑयल सप्लाई और ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन का 20% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलता है। दूसरी चीज़ है गैस, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस हमारी मैक्सिमम 80% नेचुरल गैस हम कतर से लेते हैं, और कतर ने प्रोडक्शन बंद कर दिया, तो नेचुरल गैस हमारे लिए आना बंद होगी। जो कुछ हमारी रिफाइनरीज बना रही है वो बना रही है। सो ये 2 चीज़ें जैसे ही सप्लाई बंद होती है, एक बार हम प्राइस शॉक झेल सकते हैं। प्रॉब्लम प्राइस का बाद में है। कई बार ऐसा होता है ना कि मुझे पानी की बहुत बड़ी प्यास लग रही, पीना है, और अगर मुझे मालूम है कि यहाँ एक ही शॉप है, इसी इलाके में 10-20 किलोमीटर तक शॉप नहीं है, अब वो बोलेगा यार ये 10 रुपये की बोतल नहीं है, तुम्हें 100 देने पड़ेंगे। यार चल ठीक है, कोई बात नहीं, मैं 100 दे दूंगा, लेकिन मुझे अभी ज़रूरत है। कौन सी 1 बोतल 2 बोतल ही तो लेनी है, राइट। सो आप अफोर्ड कर सकते हो कुछ समय के लिए। इवेंचुअली हमको आपको सबको पता है कि भाव तो नीचे आ जाएंगे। आज कितनी गल्फ कंट्रीज़ हैं, मिडिल ईस्ट में कंट्रीज़ हैं जो ऑयल प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, उनकी रिफाइनरीज बंद है, उनके मुंह में पानी आ रहा है। $100 क्रूड का दाम 1 जनवरी को $60 पे था, तो सबको लगता है मैं निकाल के बेच दूँ, मैंने उनका बस चले ना तो 24/7 रिफाइनरीज खोल के प्रोडक्शन करके मार्केट में डाल दे, ऐसा गोल्डन चांस मिला, लेकिन कर नहीं पा रहे। सो मेरा पॉइंट सिंपल ये है कि इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट सिंपल ये है कि अगर हमारी सप्लाई नहीं खत्म होती है, नहीं रुकती है, तो हमें प्रॉब्लम है, लेकिन वो रुक रही है। सो अब इसका इम्पैक्ट मार्केट पे इसलिए आता है, जैसे ही आपकी ऑयल गैस की सप्लाई कम होती है, सिंपल सी चीज़ है आपके लिए यहाँ पर इमीडिएटली 2 चीज़ें होती है। एक, आपको वही चीज़ जो आज आपसे 10 दिन पहले आप $60-70 में खरीद रहे थे, अब $100 $120 में लेना है, आपका इमीडिएटली डॉलर पेमेंट बढ़ जाता है। नंबर 2, 1 करोड़ इंडियंस आपके गल्फ कंट्रीज़ में हैं जो हर महीने भर भर के डॉलर भेजते हैं हमारे पास में, तो डॉलर आना बंद। नंबर 3, गल्फ कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट से जो हमारे को डॉलर मिलते थे वो डॉलर आना बंद, मतलब आपका करंट अकाउंट डेफिसिट खतरे में। नंबर 4, जब आप महंगा क्रूड इंपोर्ट करें तो आपके लिए या तो यहाँ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने, नहीं बढ़ाएंगे तो गवर्नमेंट को शॉक झेलना है टैक्सेशन के बेसिस पे, बढ़ाएंगे तो महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ने में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जैसे ही महंगाई बढ़ने का सिग्नल आता है आपके लिए, रेट सेंसिटिव, इकोनॉमिक स्लोडाउन, ये सारे दिक्कत आने लगते हैं कि अब आपके लिए इमीडिएटली आपकी करेंसी कमज़ोर हो जाएगी। पहले तो ये कि आपको ज़्यादा पैसे देने हैं, दूसरा आपकी करेंसी ऊपर से कमज़ोर, तीसरा ये कि ग्रोथ स्लोडाउन का खतरा। ऐसे में इंटरेस्ट रेट घटने का आप छोड़ दीजिए, भूल जाइए। ये सारे इम्पैक्ट जो होते हैं वो आपकी इकोनॉमी पर असर डालते हैं। इसीलिए हम नहीं चाहते कि युद्ध लंबा चले, और चले तो चले रशिया यूक्रेन टाइप चले, जहाँ पर क्रूड के दाम नीचे रहे। इजराइल हमास की तरह चले जहाँ क्रूड के दाम न बढ़े, लेकिन क्रूड के दाम जहाँ भी बढ़ेंगे वो इंडिया को इम्पैक्ट करता है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। हमारी इतनी चिंता है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो फिर अगर इक्विटीज़ पे मैं आपका आपने पूछा, सॉरी मैं आपका सेकंड पार्ट मिस कर गया, क्या अभी पैसा लगाना चाहिए। सो मैं आज एक बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च पे काम कर रहा था, मैं आपको अभी बताता हूँ, उसको मैं फाइनल टच दे रहा हूँ, और शायद मैं हो सकता है या तो कल या नहीं तो मंडे को मैं उस पर एक स्पेशल शो भी करूँगा। तो मैं डेटा देख रहा था टीम के साथ बैठ के। तो मैंने 2022 के बाद हमने कुछ डेटा निकाले। 2022 के बाद 8 बार ऐसे चांस आए जब निफ्टी की RSI,
रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो टेक्निकल आप में से कुछ समझते होंगे तो वो समझ जाएंगे, वो बहुत लोअर लेवल्स पे आ जाते हैं। RSI लोअर लेवल पे आना मतलब है कि मार्केट ओवरसोल्ड है, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा गिर गया, और RSI बहुत ऊपर आना मतलब मार्केट ओवरबॉट है, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया, इसको घटना चाहिए। 8 बार ऐसा हुआ 2022 से लेकर अब तक जब RSI 30 के नीचे आया। लोएस्ट RSI का केस था वो 23 तक का हुआ था एक बार इन 2022 के बाद से। अभी 9 मार्च को जब हम गिरे थे उस दिन RSI करीबन 27 के आसपास तक आया था। इसका मतलब है कि RSI ओवरसोल्ड जोन में हो गया। 8 में से 7 बार ऐसा हुआ है कि जैसे ही RSI 30 के नीचे आता है, ओवरसोल्ड होता है, उसके बाद मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी आती है। स्ट्रॉन्ग नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग। सिर्फ एक बार ये फेल हुआ था, शायद 22 में या कोई एक डेट में फेल हुआ था कि जिसमें रिकवरी नहीं आई, 4-4.5% निफ्टी और घट गया। हर बार रिकवरी आती है, और रिकवरी कितनी आती है? मिनिमम 2 हफ्ते से लेके 3 महीने की बात कर रहा हूँ। 3 महीने मतलब 12 हफ्ते, 2 से 12 हफ्ते के भीतर मिनिमम रिकवरी इज 5.5%, हायर रिकवरी इज 23%, एवरेज रिकवरी इज 17%। ये ट्रैक रिकॉर्ड है। सिर्फ एक एक्सेप्शन है, अब इस बार भी एक्सेप्शन है या नहीं मुझे नहीं पता। इस बार हम RSI पे 27 पे आ गए, चांसेस पूरे हैं कि हम इस बार भी रिकवर कर जाएं। अब हो सकता है हिस्ट्री रिपीट ना करें, एक एक्सेप्शन के बाद दूसरा एक्सेप्शन भी हो सकता है। एक्सेप्शन तो होते हैं, अगर हिम्मत है तो एक्सेप्शन हो जाएंगे। एक्सेप्शन तो ये था ना, कभी भी होस्ट टीम वर्ल्ड कप नहीं जीती, कभी भी कोई टीम दूसरी बार वर्ल्ड कप नहीं जीती, हमने करके दिखाया, इंडियन टीम जीती है ना। तो आप अगर करेंगे ढंग से तो हो सकता है, तो मुझे नहीं लगता। अच्छा, तो हमने सोचा कि इसको और कैसे सब्सटेंशिएट करें, कुछ और डेटा ऐसा निकालना चाहिए जिससे लगे कि नहीं यार इस पर भरोसा करें। हमने और डिटेल रिसर्च की 10 साल की। 10 साल की रिसर्च में आपको बहुत शॉकिंग लगेगा, हर साल जनवरी से लेकर मार्च पहले 3 महीनों में मार्केट का बॉटम बनता है। 10 में से 8 साल ऐसे हैं जब जनवरी से मार्च के महीने में बॉटम बनाया, और उसमें भी हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉटम 10 में से 4 बार मार्च में बनाए, 3 बार जनवरी में बनाए, 1 बार अप्रैल में, 1 बार जून में। ये आपका 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। ठीक है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। टॉप कब बनता है? हमने कहा चलो बॉटम आपका पहले 3 महीने में बन रहा है, सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच में। हर साल पिछले 10 साल में टॉप बनता है सितंबर से दिसंबर में। सिर्फ एक एक्सेप्शन था अगस्त का, बाकी 10 में से 9 बार। और हाईएस्ट किस मंथ में बनता है? 10 में से 6 बार नवंबर में बना है। और उसमें से मैंने एक साल निकाल दिया कोविड वाला 2020 का, क्योंकि कोविड वाला फॉल भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, और कोविड में दिसंबर तक में 87% का रिटर्न आया, वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। कोविड को निकालते तो 9 साल की हिस्ट्री ये बताती है। अब आपके पास में डेटा है, लेवल है, हिस्ट्री है, जनवरी से मार्च में बॉटम बनता है। अब पैसा नहीं लगाएंगे तो कब लगाएंगे? अब मतलब ऐसा तो फिर तो कोई आके मैं हाथ पकड़ के ही लगवा दूं, भाई आओ मैं ही आपके ब्याह पे इन्वेस्ट कर देता हूं, जब पैसे बन जाएंगे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा। अभी तो यही बचा है। सीरियसली मतलब ऑनेस्टली मैं कह रहा हूँ, मैं तो मुंह में पानी आता है। प्रॉब्लम क्या है? आप में से किसको नहीं पता कि ये पहला और आखिरी वॉर है? न पहला है ना आखिरी, सबको पता है। पहले कई सारे देख चुके हैं, आगे भी देखेंगे, राइट? आप सबको ये भी पता है हर एक वॉर के बाद मार्केट रिकवर होते हैं, हर एक बड़े वॉर के बाद नया लाइफ हाई बनता है। आज अगर हमने 26,000 की निफ्टी पे लाइफ हाई बनाया तो पिछले सारे वॉर के बाद ही बनाया ना। हमने भी लड़े हैं, दूसरों ने भी लड़े हैं, करेक्ट? वो सब तो है ना प्राइस में। तो आपको हमको सब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये कि जब रिकवरी आएगी वो हमें नहीं पता कब आएगी, और उस रिकवरी आने के पहले हम कितना गिरेंगे। क्या 24,000 तक गिर गए वो काफ़ी है, 23,000 तक गिरेंगे, 22 तक गिरेंगे, ये किसी को नहीं पता। और जब ये नहीं पता होता तो आपको पैसे लगाने में डर लगता है कि मैं आज लगा दूं 24,000 पे, पता चला यार ये तो 1,000 और गिर गया। गिर सकता है? पता नहीं गिर सकता है। क्यों? सब ठीक लग रहा है, 2 दिन बाद आपको लगे ट्रम्प तो बोल रहा है, अच्छा उसको कोई सर्टिफिकेट तो चाहिए नहीं कि वो जीता कि नहीं जीता, वो खुद बोलेगा मैं जीत गया, मैं बंद कर रहा हूँ, मैं जीत गया। अब क्या करोगे आप? भाई तू नहीं डिसाइड। अब ईरान तो नहीं बोलेगा कि तू नहीं जीता, मैं तो अभी भी बम मारूंगा।
ईरान तो इसी चीज़ का इंतजार कर, भाई तू बंद कर तो मैं भी करूं, करेक्ट। सो अब उसने खुद क्लेम कर दिया मैं जीत गया हूं, आज से बंद, तेजी हो गई आपकी, बराबर है। फर्ज करो ईरान के टॉप 50 लीडर तो मर गए, पीछे वाले जो बचे बोले नहीं नहीं ये ऐसे कैसे जीत गया, हमने तो इस दिन के लिए झगड़ा किया था, आज चलो न्यूक्लियर मारते हैं। फिर 3000 पॉइंट निफ्टी नीचे। पॉइंट ये है, दिक्कत क्या है, वॉर खत्म होने के बाद तो हमें पता चलेगा खत्म हो रहा है, लेकिन कब खत्म होगा, किस लेवल पर होगा, वो उस दिन पता नहीं चलता जिस दिन बॉटम बनता है। फिर क्या करें? फिर सिंपल तरीका यही है कि आपको स्टेगर्ड वे में पैसा लगाना है, और उसके लिए मैं आपको एक बहुत बढ़िया तरीका बताता हूँ जिसको मैं कहता हूँ SBS। किसी को पता है SBS का फुल फॉर्म? अगर टीवी देखते हैं आप, शॉर्ट ब्लास्ट SIP। शॉर्ट ब्लास्ट SIP। सिंपल एक काम करना है, आप ये सोचो ये वॉर 3 से 6 हफ्ते चलेगा, अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट है तो, और या फिर आपको कम कॉन्फिडेंस है तो मान लो 3 से 6 महीने चलेगा, ठीक है। चलो मान लो 3 से 6 महीने नहीं चला है, 3 से 6 हफ्ते और आगे चल गया तो चलने दो, 6 हफ्ते बाद हमारी आदत ही हो जाएगी, चल रहा है, रोज ही चल रहा है। भाई जिस समय डिमोन हुआ था तब मोदी जी ने क्या बोला था, 50 दिन मुझे दीजिए, 50 दिन बाद क्या आदत हो जाएगी, करेक्ट। 50 दिन बाद आपकी आदत हो जाती है कि भाई इसी से काम चला लेंगे। सिमिलरली भाई आज एक चीज़ बताओ, आप ऑनेस्टली मुझे बताओ, आज बताए ना 13वीं, आज पता है 13वीं है किसकी? आज युद्ध की 13वीं है, आज 13वां दिन है ईरान और इजराइल वाले का युद्ध। तो पॉइंट ये है कि जो 13 दिन पहले जितना आप टीवी देख रहे थे, आज उसके मुकाबले में कितना % देख रहे हैं? और उस समय आप घूर घूर के देखते, अच्छा 2 मिसाइल इधर गिरी है, 4 उधर से ये इसके ड्रोन आ रहे हैं, अच्छा अब तो बेरूत भी आ गया, अब तो कतर भी आ गया, अच्छा ओमान पे भी डाल दिया। आज आपको कुछ फर्क पड़ता है? पूरे दिन टीवी ना देखें आप कि किसने कितने बम गिराया होंगे, और हैबिचुअल हो गए हम लोग, न्यूट्रल हो गए, माइंड सेट। सी ये हर वक्त थोड़ी मार्केट में, दुनिया में, कंपनी में कुछ बदल रहा है। कल भी आप HUL का उतना ही शैम्पू और सोप यूज कर रहे थे जितना आज कर रहे हैं, लेकिन भाव तो घट गया ना उसका। तो ये सेंटिमेंट जो आपका, सिंपल सा एक एग्जांपल बता दो, आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया। जिस दिन पहला केस आया था कोविड का केरल में, उस दिन सेंसेक्स गया 1000 पॉइंट, और जिस दिन के 10 लाख केसेस आते थे, 10 लाख, और मार्केट रोज बढ़ता था। अब क्या सही है? तो पॉइंट ये कि जिस दिन आप में अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाए, बस यार ये तो ठीक है चलता रहेगा, और वो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे अपने आप आने लगता है जब आपको अब मार्केट कब गिरेगा? अब मार्केट तब गिरेगा जब क्रूड वापस से 120 हो जाए, 140 हो जाए, 150 हो जाए, या कुछ अनएक्सपेक्टेड ईरान कोई न्यूक्लियर कर दे, या ऐसी जगह बम मार दे जो आपने नहीं सोचा, या अमेरिका कुछ और ही बहुत बड़ा कर दे। तो सिंपल सी चीज़ है, वो रिस्क लाइफ में हमेशा रहेगी, वो रिस्क कभी खत्म नहीं होने वाली, बट उस रिस्क को मिटिगेट करना आपको आता है। मिटिगेट करने का सिंपल तरीका है कि 3 हफ्ते 6 हफ्ते जो आपको ठीक लगे, इक्वल पैसा जो आपका पड़ा है मार्केट में शांति से डाल दीजिए, हर हफ्ते एक इंस्टॉलमेंट डाल दीजिए, 6 हफ्ते तक डाल दीजिए। थोड़ा कम रिस्क लेना है तो 6 महीने तक डाल दीजिए, और बाद में 6 साल बाद देखिए आपके पैसे 3 गुना होते कि नहीं होते। सिंपल, आज भी मैं यही हूँ, और 6 साल बाद ईश्वर ने चाहा तो आप और हम फिर मिलेंगे। लिख के रख लीजिए, अगर 3 गुना से कम मिले तो बात कीजिएगा। ये तो हर वॉर के बाद इतने पैसे बना के जाता है, बस सिंपल ये कि हमें नहीं पता होता। तो नहीं पता है तो 2 ही तरीका है, या तो शॉर्ट ब्लास्ट SIP कीजिए, या फिर दूसरा तरीका ये कि जिस दिन खत्म हो जाए उसके बाद भले मैं तो 5% ऊपर ले लूँगा, 3% ऊपर ले लूँगा, जिस दिन खत्म मैं तो सेफ रहूँगा, वो भी बुरा नहीं है। तब आप लगाइए, तब ये मत सोचिए कि यार वो तो आज ही युद्ध खत्म हुआ, ये तो सीधे ही 1000 पॉइंट ऊपर खुल गया, अब क्या करूं? अब वो दोनों चीज साथ में नहीं होगी कुशल। या तो आप एकदम बॉटम पे ले लो, और बॉटम तो खराब खबरों पे बनता है, टॉप हमेशा अच्छी खबरों पे बनता है। आज तक बताओ जिस दिन लाइफ हाई बना उस दिन खराब खबर थी क्या कोई? अगर उस दिन खराब खबर होती तो मार्केट लाइफ हाई पे क्यों जाता? करेक्ट। सो सिंपल सी चीज है,
आप दोनों में से जो तरीका आपको ठीक लगे उसमें पैसा लगा लीजिए, लेकिन लगाइए ज़रूर। और दूसरी चीज़ और कहना चाहता हूँ कुशल वही कि आप पैसा लगाओ मत लगाओ कोई बात नहीं, कम से कम जो लगा रखा है उसे निकालो मत। ये सोच के कि अब मैं 24,000 पे बेच देता हूँ, 22,000 पे वापस ले लूँगा। भाई साहब अपने इतनी समझदार थे तो 26 पे ही बेच देते। आज तक बेच के वापस कोई ले नहीं पाया, और अगर कोई ले पाता है यू मस्ट प्रैक्टिस। किसी ने पहले नहीं किया अब करना है, नथिंग रॉन्ग इन इट, डू इट योरसेल्फ। लेकिन उसमें एक ही काम करना, खाली अपना पोर्टफोलियो का 2-5% ही बेचना, और फिर करके देख लेना कि वापस ले पाते हैं कि नहीं ले पाते। जिसने अपना पूरा पोर्टफोलियो जीरो किया वो वापस कभी नहीं ले पाए, और उसके बाद उसको अभी तो आपको एक ही बार तकलीफ हो रही है, तब 2 बार तकलीफ होती है। पहला तो आपने बेचते वक्त तकलीफ होती है, मेरे को लॉस में बेचना पड़ रहा, प्रॉफिट में तो किसी का है नहीं। और दूसरी बार तकलीफ ये होगी कि मैं वापस नीचे ले नहीं पाया, अब तो पहले से ऊपर भाव चले गए, जिस भाव पे मैंने इन्वेस्ट किया था वो भी आ गए, वो तकलीफ और भी ज़्यादा है। तो 2 बार क्यों तकलीफ लेना, एक ही बार की झेलने काफ़ी है। सर, सो आपके एंटायर 37+ years ऑफ करियर में what has been your best investment and what has been your financial worst investment जहाँ पर आपने पैसा बनाया था और खोया था? बेस्ट इन्वेस्टमेंट तो एक सिंपल सा यही है कि मैंने बहुत पहले 2005 में मीडिया में आने से पहले मैंने जो इन्वेस्टमेंट कर दिए स्टॉक्स वगैरह में, कुछ अच्छे स्टॉक्स में, तो वो मेरे चलते रहे, बढ़िया हो गया। क्योंकि चूँकि मीडिया में हूँ तो जनरली मैं वो खरीदने बेचने वाला काम करता नहीं, तो अपने आप ही कई बार क्या होता है, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते नहीं, हालात बना देता है राइट। कई बार आपके शेयर इसलिए नहीं बिक पाए कि पिताजी आपके लिए शेयर छोड़ के गए, तो आपको पता ही नहीं था कि ये पड़े हुए हैं, पड़े होते तो आप बहुत पहले बेच देते। कई बार आपके शेयर बेचने का मन होता है, लेकिन उस दिन डीमैट अकाउंट का नंबर कहाँ है, स्लिप कहाँ है, किसको इंस्ट्रक्शन देना है, आज करता हूँ कल मेरा तो अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया, वापस जब खुलेगा करूँगा, तब तक पता चला कि आपका बेचना रह गया। तो कई बार मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट तो है ना गलती से होल्ड करने से हो जाते हैं और वो बढ़िया रिटर्न दे जाते हैं। वर्स्ट इन्वेस्टमेंट का जहाँ तक सवाल है, वर्स्ट इन्वेस्टमेंट जैसी कोई चीज़ मैंने ऐसी की नहीं कभी, और शायद मैंने मीडिया में आने के नहीं, उसके पहले कुछ जब समझ भी कम थी, मार्केट इतना मेच्योर नहीं था, रिसर्च इतनी होती नहीं थी, तो कुछ ऐसे 1-2 स्टॉक्स रहे होंगे जिनमें आईपीओ में या इन्वेस्ट किया होगा, बट दैट वाज वेरी स्मॉल अमाउंट कि आई नीड नॉट रिमेंबर ऑल्सो। तो मैं कई बार कहता हूँ कि आप इन्वेस्टिंग के बिजनेस में हैं, इन्वेस्टर हैं, तो गलतियाँ तो होगी, पक्का होगी। हम रोज़ सुबह शाम मार्केट एनालिसिस करते हैं। हमारा तो सीधा हिसाब है, सुबह 8 बजे रोज़ मुझे एग्ज़ाम देना है, 8 से 8:30 बताना है कि मार्केट में आज क्या होगा, 3:30 बजे मेरा रिजल्ट आ जाता है, पास हुआ कि फेल। आप सबको पता जा रहा है, सुबह तो अनिल जी तेजी बोल रहे थे ये तो देखो ख़राब हो गया, या सुबह तो ख़राब बोल रहे थे ये बढ़ गया, तो हमारा रिजल्ट रोज़ आता है। लेकिन सिंपल सी चीज़ है, गलती करो, ज़रूर करो, एक नहीं कई बार करो। 2 ही कंडीशन है, जो भी गलती करे उससे सीखो ज़रूर। अगर गलती करके नहीं सीखा तो वो गलती है, गलती करने के बाद हमने सीख लिया तो वो गलती नहीं है। दूसरी चीज़, उसी गलती को बार बार मत करो। अब एक बार कर ली, सीख जाओ यार, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हमें एक बार में नहीं सीखेंगे तो दूसरे क्या करेंगे, फिर दूसरों का भी तो सोचो। और तीसरी चीज़ है, कोई भी गलती इतनी बड़ी मत करो कि दूसरी गलती करने लायक ही न रहो। ये गलतियाँ तो हमें और करनी है, रोज़ करनी है, जब तक जिएंगे होगी गलतियाँ। मैं कभी मेरे ऑफिस में कलीग्स हैं, स्टाफ है, कई बार रिसर्च लेके आते हैं, पेपर लेके आते हैं, डेटा से हैं, मैं डांटता नहीं, मैं ये तूने गलत किया इसको ठीक कर। तो कभी कभी मुझे बोलते भी सर आप तो बड़े कूल हैं, आराम से आपके साथ काम करने, कभी डांट नहीं पड़ती। मैंने कहा तू काम तो कर रहा है अगर काम करना बंद कर दिया तो डांटूंगा किसको। सो पॉइंट ये कि जो काम करेगा वो गलती करेगा। आमतौर पर डूबते वही है जो पानी में उतरते हैं, किनारे पे बैठा हुआ आदमी कैसे डूबेगा, करेक्ट। सो आप गलतियाँ करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन 3 फॉर्मूला को लगा लीजिए और वो फॉर्मूले के साथ चलेंगे तो आपको कभी नुकसान नहीं होगा। मैं हर बार ये कहता हूँ कि वो कहावत भी आपने सुनी होगी कि हर बुल मार्केट के बाद, जब बुल मार्केट ख़त्म हो तो आपके पास पहले से ज़्यादा पैसे होने चाहिए। जब बुल मार्केट शुरू हुआ था और जब ख़त्म हो रहा है उससे ज़्यादा पैसे आपके पास होने चाहिए, वेल्थ आपकी उससे ज़्यादा होनी चाहिए। और जब हर बुल मार्केट ख़त्म हो, बेयर मार्केट आ जाए, बेयर मार्केट ख़त्म हो तो नेचुरली पैसे तो कम ही होंगे, लेकिन पहले से ज़्यादा अकल आनी चाहिए।
तो तेजी के मार्केट में पैसे कमाने हैं, मंदी के मार्केट में अकल कमानी है। कमाना ज़रूर है कुछ न कुछ। क्या बात है। तो सर यहाँ पर बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बैठे हैं। इफ़ आई कैन टेक यू बैक टू योर सीए जर्नी, तो आपके जो सीए डेज थे, आज कैसे आपको वो सीए डेज हेल्प करते हैं इन योर डे टू डे लाइफ, एंड व्हाट वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग एनेक्डोट और स्टोरी फ्रॉम योर सीए डेज और आरवीजी डेज? देखो, सीए का प्रोफेशन का बड़ा फायदा, आई डोंट नो, आप लोगों में से शायद बहुतों को पता नहीं होगा कि मैं बाई प्रोफेशन तो सीएस हूँ। 2005 में मैं मीडिया में आया, गलती से इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने मीडिया, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन ऐसी कोई पढ़ाई नहीं की, कोई डिग्री नहीं ली, नौकरी ज्वाइन करने के बाद कोई डिप्लोमा नहीं किया। जो कुछ सीखाऊँ ऑन द जॉब ट्रेनिंग 2005 के बाद सीखा। मैंने कभी कोई प्रॉपर तरीके से ऑफिशियल अनऑफिशियल किसी तरह की कोई ट्रेनिंग नहीं ली। तो आप सोचेंगे फिर कैसे मैं एक नंबर 1 बिजनेस चैनल का हेड बन सकता हूँ। मैं जहाँ मीडिया की पढ़ाई के करके आने वाले धुरंधर लोग हैं, उनके सामने मैं एक चैनल को नंबर 1 बना सकता, इतनी बड़ी बड़ी ब्रांड्स के सामने हम कैसे बना सकते हैं? उसके 2 बड़े कारण हैं, रादर 3। पहला तो ये कुशल के चार्टर्ड अकाउंटेंट होने की वजह से जो हमारी समझ बिजनेस, इकोनॉमी, मार्केट, बैलेंस शीट, नंबर की है, वो दूसरे बिजनेस जर्नलिस्ट की नहीं हो सकती। बहुत मुश्किल है मैच करना। मैं ये नहीं कहता कि हम बेस्ट हैं, और भी लोग बहुत अच्छा कर, लेकिन हम किसी से कम नहीं है। हमारे जैसे एनालिस्ट मिलना, बनना दूसरों के लिए मुश्किल काम है। हमारे में तो हमारी डिग्री की वजह से ये इनबॉर्न टैलेंट है, डिग्री का इनबॉर्न टैलेंट है। तो पहली चीज वो है। दूसरी चीज है कि सीए की डिग्री का क्या मतलब है। जब मैंने तो अकाउंट्स, ऑडिट, टैक्सेशन ये सब पढ़ा था, करेक्ट? मैंने तो जर्नलिज्म नहीं पढ़ा, बराबर है। सीए में तो हमारे एक ही चीज़ तो नहीं ढंग से पढ़ाई जाती कि प्रेजेंटेशन कैसे देना है, करेक्ट? अब तो होने लगे नई जनरेशन में। हमारे जनरेशन में तो ये था कि मतलब हमको सब आता है, लेकिन एमबीए वाला आके सारा लाइमलाइट लूट के ले जाता, बोलता तो महफिल एमबीए वाला लूट गया। हमारी वो जो कम्युनिकेशन स्किल्स थी वो बहुत कम थी। तो लेकिन सीए की डिग्री में आपने जो कुछ पढ़ा है, फॉर एग्जांपल हमने वो इंटर के सेकंड ग्रुप में पास करने में सबको मुश्किल आई होगी। 3 पेपर होते थे, एक मैथ्स होती थी। अब ऐसी मैथ्स और 2 थ्योरी पेपर, मतलब कहे कि चारों ग्रुप में से एक ग्रुप सबसे मुश्किल काम है, तो इंटर का सेकंड ग्रुप होता था। मेरे ज़माने में तो यही था। आप में से भी बहुत सारे लोग हटके होंगे इसमें, आई एम श्योर। लेकिन वो मैथ्स जो मैंने पढ़ी, वो साइन थीटा और पता नहीं क्या क्या जो था, वो उस दिन के बाद आज तक कभी न मेरी लाइफ में काम आई न मैंने पढ़ी। अब आप ये सोचेंगे यार फिर पढ़ी क्यों, इतना टाइम उसी में लगाया, राव साहब की क्लासेस पढ़ के हो। सीए की डिग्री, और फॉर दैट मैटर एनी डिग्री, बी यू आर ए डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, प्रोफेसर, वट एवर यू आर, this degree gives you a certificate that you have a certain level of IQ. ये आपका इंटेलिजेंस लेवल है। आप सीए तो मतलब एक लेवल का इंटेलिजेंस तो आपका है, नहीं तो हर कोई तो सीए नहीं बन सकता। आप डॉक्टर बने तो एक लेवल का आपका इंटेलिजेंस लेवल है, IQ लेवल वो जो बोलते हैं। तो वो आपको एक कॉन्फिडेंस देता है कि यार मेरे में एक किसी कॉमर्स ग्रेजुएट या किसी भी ग्रेजुएट के मुकाबले में ज़्यादा दिमाग है, या किसी और डिग्री के मुकाबले में, तो वो आपको एक एज देता है। नंबर 2 तो डिग्री का ये फ़ायदा। तीसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, जो चाहे वो आरवीजी का कह दें, चाहे सीए का होने का कह दें, वो है सीधे और आसान शब्दों में घिसाई। सीए में जो घिसाई होती है, ओ भाई साहब, वो लाइफ में इतनी काम आती है, मैं बता नहीं सकता। आज अगर मैं सक्सेसफुल हूँ, नॉट दैट कि मैं बहुत सही में ईमानदारी से बोलता हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं कर रहा। प्रॉब्लम क्या है कि बाकी लोग बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहे हैं, बिलो एवरेज काम कर रहे हैं। हमारा क्या है, हमारे डीएनए में एक चीज़ आती है, मेहनत करना, हार्ड वर्क। 16-18 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा अगर सीए बनना है तो। आर्टिकलशिप भी करनी है, शाम को वापस क्लासेस भी करनी है, वो पढ़ के दूसरे दिन वापस सुबह ऑफिस भी जाना है, फिर क्लासेस करनी है, भागना है, सैटरडे संडे को संडे टेस्ट देने। आई डोंट नो आजकल क्या चलता है,
श्वेता जी मुझे आइडिया नहीं है बहुत ज़्यादा, हालांकि मेरा बेटा सी हुआ तब भी मैंने उसको पूछा नहीं। मैंने कहा मैं जब सी हो रहा था मेरे पापा ने मुझे नहीं पूछा कि कैसे पढ़ता है, मैं भी तुझे नहीं पूछूंगा, राइट। लेकिन पॉइंट ये है आपकी मेहनत करने की जो आदत पड़ जाए। आज मेरी 55 साल की उम्र है, मैं रात को घर पे 1 बजे आऊँ, 12 बजे आऊँ, 2 बजे आऊँ, 8 घंटे की 6 घंटे की इंटरनेशनल फ्लाइट से आऊँ, उसके बावजूद मैं जब सोता हूँ उसके पहले मैं 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, टाइम जितना मिले, मिनिमम आधा घंटा, मैक्सिमम 2 घंटा पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। मेरे नेक्स्ट डे मॉर्निंग के नोट्स बनेंगे ही। और कई बार मेरी वाइफ से इस बात को लेकर बड़ा झगड़ा हुआ, अरे ये क्या तरीका है, अब 2 बजे घर आके कौन पढ़ता है। मैंने 1-2 बार कोशिश भी की कि यार 2 बजे बात तो सही कह रही है, गलत तो नहीं है। अब वो क्या होता है, और अच्छा मेरा सुबह उठने का टाइम फिक्स है, 5 बजे उठना ही है। 5 बजे का अलार्म फिक्स है, आप अभी मोबाइल में देख सकते हैं 6 अलार्म एक साथ लगा रखे हैं, ठीक है, और अलग अलग टोन के लगा रखे हैं, ताकि ये वाले टोन पे तो लास्ट में उठ ही जाना है, कितना भी हो जाए। वो लास्ट टाइम 5:30 बजे, 5:30। तो मैंने कई बार कोशिश की, फिर होता क्या है कि अब वो एक तो आपका काम नहीं हुआ, दूसरा आप लेट सो रहे हैं, तो इतना बैक ऑफ द माइंड स्ट्रेस रहता है, अरे यार बाकी तो जितना 2-3 घंटा आपको मिल रहा है वो भी आप ढंग से नहीं सो पाते। तो मैंने कहा इससे तो बेटर मैं ये कंप्लीट करके सोऊं, तो मेरे को ये तो संतोष है कि मेरे सुबह का काम हो चुका है। तो मैं हमेशा वो करने के बाद सोचता हूँ, और इसीलिए हमारी आदत पड़ जाती है कि हमें मेहनत करने की आदत सीए के ज़माने से, और हम लोगों को लगता है हम बहुत कर रहे हैं, हमें लगता ही नहीं कि हम मेहनत कर रहे हैं, कि हमारी तो आदत ये है, कब नहीं की। मतलब ये चीज़ समझ लो, जिन लोगों को ये लगता है एक बार डिग्री ले लें लाइफ आसान हो जाएगी, मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ आपकी लाइफ डिग्री लेने के पहले ही आसान थी। एक और चीज़ बताता हूँ, आज हम नंबर 1 बिजनेस चैनल हैं। अप्रैल 2020 कोविड के जस्ट बाद हम नंबर 1 बने। 18 साल का इतिहास था बड़े बड़े चैनल्स का, जिनको पीछे करके पहली बार कोई दूसरा चैनल नंबर 1 बनाए, और तब से लेके आज 6 साल हो गए। हम एक हफ्ता भी ऐसा नहीं जाता जब हम नंबर 1 ना हो। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सक्सेसफुल होना बहुत आसान है, लेकिन कंटिन्यूस नंबर 1 बने रहना बहुत मुश्किल काम है। और जो लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं उनको मैं ये चेतावनी भी देता हूँ कि भाई साहब सोच लेना, जितने ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे उतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं चलेगा कि अपनी डिग्री हो गई काम निपट गया। तो डिग्री के बाद जो स्ट्रगल है आपकी करियर में, प्रोफेशन में, बाद में जो भी आप कर रहे हैं, जितने आप सक्सेसफुल हैं, अब मोदी जी चाहें तो भी थोड़ी सोच सकते हैं कि आज मैं तो देश का प्रधानमंत्री, मैं तो आज 8 घंटे की नींद लूँगा, कोई डिस्टर्ब ना करे। मोदी जी नहीं कर सकते, चाहे तो भी नहीं कर सकते। तो आपको ये तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। लेकिन सीए की डिग्री होने से आपको ये फ़ायदा मिलता है कि आपकी आदत हो जाती है कि आप मेहनत करना सीख जाते हैं। और ये सबसे ज़्यादा सीए में भी और हॉस्टल में भी दोनों चीज़ यही सीखी है, यही काम आ रही है आज भी। Wow, that deserves a huge round of applause. Very very inspiring answer. आप like 1:32 AM को भी आने के बाद आप पढ़ोगे and then you will wake up the next morning. Last question from my side before we take questions from the audience. This is a tricky question that I ask all my podcast guests also. So I've done 345 podcasts in the last 5.5 years, and ये question सबसे ज़्यादा tricky होता है इनमें. If you were in the shoes of Kushal Lodha and if you were interviewing Mr. Anil Singhvi, what is one question you would like to ask him towards the end? अगर मैं कुशल लोढ़ा हूँ तो मुझे अनिल सिंह का इंटरव्यू करना है, लास्ट क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन है, यस यार है, सिंपल सी चीज़ है। मैं ये पूछूंगा मुझे अनिल सिंघवी से आगे जाना है, उसके लिए क्या करना है? So मुझे अनिल सिंघवी से आगे जाना है तो क्या करना चाहिए? See, follow your passion, do what you love, love what you do. सिंपल सी चीज़ है। सचिन सर क्रिकेट जब खेलते थे, मैन ऑफ द मैच होते थे, अवार्ड लेने जाते थे, उनको पूछता था कि हाउ डिड यू बिल्ड योर इनिंग, दिस रवि शास्त्री पूछेंगे, नो 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 आई वॉज जस्ट प्लेइंग माई नेचुरल गेम, आई वॉज एंजॉइंग द गेम, दिस दैट। मैं भाई टीवी पे देखते ऐसे सोचता था, मैं भाई एंजॉइंग, इतना बड़ा मैच, 100 करोड़ इंडियंस, इतना प्रेशर इस आदमी पे, और बाहर बैठे हैं हम लोग जो मैच देख रहे हैं, गलती से ऑफ स्टंप की बॉल को बाहर मारने के चक्कर में कैच दे दिया स्लिप में, अरे यार ये नहीं करना, ये तो बॉल छोड़ देनी चाहिए थी, क्यों फालतू में उधर बैट लगाया, कैच हो गया। अब वो तेंदुलकर है, इसीलिए क्रीज में है।
इतनी सेंचुरी मार चुके हैं, लेकिन फिर भी हम जैसों की सुननी पड़ती उनको, जिन्होंने ज़िंदगी में बल्ला ढंग से नहीं पकड़ा। हम तो बताए कि ये छोड़ देनी चाहिए, मार देनी चाहिए। सोचो क्या प्रेशर उस आदमी पे होता होगा, राइट? Having so much of pressure, still you perform every single time. How do you do this? Because you love what you do. And when you love what you do, you are never tired. You are never under stress. मेरा सिंपल है, फॉर एग्जाम्पल किसी दिन अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मुझे मार्केट समझ नहीं आ रहा, तो कौन सा ज़रूरी है कि मुझे बताना है कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? मैं सीधा आके बोले यार आज समझ ही नहीं आ रहा, पता नहीं यार, भगवान जाने क्या होगा, ये बहुत मामला ट्रिकी है। क्या दिक्कत है? बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। नहीं आता तो नहीं आता है, गलती हो गई मान लो, पैशनेट रहो। अगर आप पैशनेट हैं तो आपको एनर्जी मिलती, वही काम का। सी अल्टीमेटली आप अगर दिन रात लगे हैं अपने प्रोफेशन में, अपने काम में, तो कहीं से तो एनर्जी आएगी। वो एनर्जी का सोर्स आपको, किसी को ये हो सकता है कि मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मुझे कितना मज़ा आ रहा है, किसी को ये हो सकता है मेरे क्लाइंट को कितना अच्छा लग रहा है, किसी को लगता है कि मैं कितने पैसे बना रहा हूँ, या किसी को ये लग सकता है मेरी फैमिली कितनी खुश है। इट कुड बी डिफरेंट रीजन फॉर एवरीवन, बट माय सिंपल पॉइंट इज if you love what you do, then you are never tired. Even if you work for 14 hours, 16 hours, 18 hours, you enjoy it and you derive more and more energy from that. This is what I do. So I would tell everyone, despite, I mean, आप 60 के हैं या 40 के हैं या 20 के हैं, यार जो अपना पैशन है वो फॉलो करो, मन लगा के काम करो, दिल लगा के काम करो, स्ट्रेस मत लो, लेने का नहीं। और मेरा तो जॉब ऐसा है, मैं स्ट्रेस लेता ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है अगर स्ट्रेस लेने से मार्केट ऊपर बढ़ जाए, मैं भी लूँ, आप सबको भी दिलाऊं, राइट? चलो आज हम सब लोग मिलकर रोते हैं मार्केट ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं होता ना। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं उसका स्ट्रेस क्यों लेना है? एंजॉय करो, जो मोमेंट है देखा जाएगा। सो बस इतना सा है, बाकी और कुछ नहीं। आप मेरे से कहीं आगे जा सकते हैं, मुझसे काफ़ी बढ़िया कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं आपकी उम्र में था तो आपकी तो 10-20% अकल भी नहीं थी मेरे में। तो आप तो ऑलरेडी, हमारे ज़माने में तो माहौल अलग था, अब दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। मैं एक और चीज़ आपको कुशल बताना चाहता हूँ। मेरी टीम में, आप सब लोगों को भी बोलता हूँ जो प्रोफेशन में है, मेरी टीम में हर वक्त में 3-4 जेनजी को रखता हूँ। मतलब यंग बच्चे होने ही होने चाहिए, इंटर्न्स होंगे, फर्स्ट जॉब वाले होंगे, और मैं कोशिश करता हूँ 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में एक बार उनके साथ आधा 1 घंटा बैठता हूँ। नहीं तो क्या है, वो कहते हैं ना कि वो जो जनरेशन गैप वाली प्रॉब्लम है, हम सोच रहे हैं हम बहुत बढ़िया टीवी कर रहे हैं, हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हम क्या, अरे 1 जनरेशन बाद, 2 जनरेशन बाद उनको क्या देखना है, वो क्या सोचते हैं, अगर वो हम नहीं करेंगे ना, हम बहुत पीछे रह जाएंगे। सो जो यंग जनरेशन है उनकी थॉट प्रोसेस समझना चाहिए। क्या नहीं तो जनरली क्या होता है, हमारे कैसे इसको, ये सब बेकार है, ये वो अंकल हो गए हैं, ठीक है, वो बोलेंगे फिर आपको, क्योंकि अगर आप उनके थॉट्स नहीं समझ पा रहे हो, उनका काम करने का तरीका नहीं समझ पा रहे हो, तो वो आपको बोलेंगे अंकल यार छोड़ो, और फिर पता चला कि आप ग्रेजुअली उनसे दूर हो गए। सो आई थिंक रिमेन इन टच विद यंग जनरेशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड देम रादर देन स्कोल्डिंग देम। देखो, क्योंकि भाई मेरे पिताजी को ये प्रॉब्लम थी कि मैं मेहनत नहीं करता, लेकिन मुझे लगता था मैं बहुत कर रहा हूँ। मेरे को प्रॉब्लम मेरे बच्चों से कि वो मेहनत नहीं करते, जब उनको लगता है वो बहुत कर रहे हैं। ये तो हर जनरेशन में यही प्रॉब्लम है। तो फिर आप थोड़ा कुछ चीज़ें लाइफ में चेंज करेंगे तो आई थिंक उसके बहुत बढ़िया रिजल्ट आएंगे, मज़ा आएगा। Amazing. Do what you love and love what you do. That's the $1 million advice that we have from Mr. Anil Singhvi, sir. Thank you so much, sir, for doing this. It was amazing moderating this session. I'll open the floor for audience question and answer. I'll request if someone can take the mic to the audience. If anyone has a question, please raise your hand and we'll get the mic arranged for you. नहीं, RSI में टाइम फ्रेम नहीं होता। RSI, आप RSI फॉर्मूला डालेंगे या किसी भी वेबसाइट पे डालने जाएंगे, वो एक सिंपल हमेशा आपको मिल जाएगा फॉर्मूला इमीडिएटली। तो वो एक सिंगल नंबर है विच इज़ इजीली अवेलेबल। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, RSI's full form is relative strength index. It can be applied on stocks,
It can be applied on index anywhere. जी सर, एक दे दीजिए, हम एक से काम चला लेंगे. जी. Hello. Hello, Sangvi sir. Good evening. Good evening, sir. बोलिए. Sir, my question is to you that being a chartered accountant, so many chartered accountant are the group CFO or group financial controller, but you have chosen to become the editor. What is the reason behind this? So it wasn't planned, sir. Actually, it was accidental. I never thought that I will go into media. So in 2005, see, only thing is like, since my childhood, my school, college days, I never had stage fear because of my mom. She was a headmistress and she used to push me every time. Every single competition happening in school or college, you must participate. Whether you come first or last doesn't matter, but you must participate. So I never had any stage fear by the time I became chartered accountant. And then, you know, in 2005, CNBC was planning to start a Hindi business channel. So they were looking for someone who understands and speak Hindi very well. Number one. Number two, he should be a journalist, especially business journalist. And third is like, he understood business and stock markets very well. So they were not finding a proper combination of all three. And in me also, they could find only Hindi and proper understanding of business and markets. They compromised, appointed me for many, many years. I was taking salary from them, learning at their own cost. And today what I am. It's accidental, I never planned of it. Yeah. Another I heard just now, you were telling, no, this GST2 benefit, why you are not passing to the customer, end user, correct? Yeah. Has it gone to the end user or it is just wrong narrative? See, what happens, there is never, ever 100% things are correct. Correct. See, if it is in my hand, probably I'll implement everything. What happens, as a journalist, what is my job? My job is to raise the right things. If there are concerns, if there is something wrong happening, it is my job. I am not court. I am not government. I am not bureaucrat. I am not police. And I know that. I am journalist, I am media. So my job is to raise the question at right platform, which I have my own channel. Correct. And we try to send the message to the right person, right organization, right ministry, then it's up to them. We, of course, at times we follow up and we try to see it. But after a while, if we feel, if anything which is raised to great extent, if it is implemented, ठीक है, 100% तो कभी नहीं होता सर, right? जितना हम करवा सके, जितना हम कर दें, उतनी कोशिश हो. No, you are the right person. I have seen you are the first person who has raised this issue. But I'm not talking about you. I'm talking about the government. Has the government given the benefit to the end users, or what is the government steps they have taken? And the government is government can do anything. They can implement whatever they have announced, whatever they have notified. सर गवर्नमेंट को तो देना है, इसीलिए तो उन्होंने किया है. अब अगर सपोज आपकी कार पे जीएसटी 28 से 18% हो गया, राइट, 12%, तो कार्स को जीएसटी कम करनी है, राइट. अगर वो नहीं कम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट का काम है देखना, और गवर्नमेंट इंश्योर करेगी. कुछ चीज़ें अब हो सकता है अगर किसी कार मेकर को 12% का बेनिफिट मिल रहा है, वो 8% देगा, 4% रख लेगा, वो सब होता है सर. बट मेजर बेनिफिट इज बीइंग पास. बंद सर, वेन दे एक सर मैं आपके साथ थोड़ी वो करने के शास्त्रार्थ करने के लिए आया हूँ, दूसरों को भी मौका दीजिए. Sir, this is a great session of media and social media. Thank you. So what is the future of, in terms of youngsters who are here, what they should go for, whether media or a social media? See, my point is very simple.
And I'll come back to the last answer what Kushal asked. Do whatever you like. आपको सोशल मीडिया पसंद है, सोशल मीडिया में जाइए. आपको मीडिया पसंद है, मैं आपको फ्रेंकली बताता हूँ, कई सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो जर्नलिस्ट थे, छोड़ के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गए. मुझे बोलता अनिल तू क्या करता है? At this age, 55, why you need to get up at 5 o'clock in the morning? Why you need to work 6-7 days a week? मंडे टू फ्राइडे मेरा शेड्यूल होता है, 5-6 घंटे रोज़ लाइव करता हूँ. वीकेंड्स में मैं हर सिटी में ट्रैवल करके सेमिनार्स कर रहा होता हूँ. इतना प्रेशर लेना है, 300 लोगों की टीम मैनेज करनी है, ये सारा है. तू छोड़ क्यों नहीं रहा? तू खुद का अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर दे, उसमें बहुत पैसे हैं, यहाँ से ज़्यादा कमाएगा. मैंने छोड़ा है, मैं जितना 2 दिन की पूरे महीने की सैलरी थे 2 दिन में आ जाते हैं. It's fine, but that's your choice. I love doing this. मुझे ये अच्छा लगता है. आज फॉर एग्जाम्पल कुशल है, कुशल इज़ अ वेरी गुड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, राइट. लेकिन आज अगर किसी सीएम को उठा के फ़ोन करना तो मैं कर सकता हूँ, शायद कुशल नहीं कर सकता, राइट. तो लेकिन हो सकता है कुशल की रीच लोगों में मेरे से ज़्यादा होगी, वो एक पॉसिबिलिटी है. कुशल की अपनी ब्रांड है, मेरी चैनल की ब्रांड है. तो हर एक के फायदे नुकसान है. आपको क्या पसंद है वो आप करिए. मुझे ये पसंद है, मैं ये करता हूँ, सिंपल. Anil ji, thank you for the very wonderful interview you did today. I think it was fantastic. Kushal, Thank you, sir. Congratulations on the very nice questions, sets of questions. I have one question for you, sir. God has given all of us 24 hours, not a single second more, not a single second less. If God particularly came to you, Anil ji, and told you that here is 1 hour extra in a day, what would we be seeing you doing in that 1 extra hour? I'll read and research more. Simple. I'll read and research more. See, I'll tell you one thing. Sleep and hunger, you can increase as much as you want and you can decrease as much as you want. So ये 2 चीज़ों में दिमाग लगाने का फ़ायदा नहीं है कि आप 2 चपाती में भी पेट भर सकते हो, 4 भी खाएंगे तो लगता है और क्या मीठा खा लूँ. ठीक है, वो आपके ऊपर है. आप अपनी बॉडी को उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं. सिमिलरली नींद में भी वैसा ही है. अब कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि अब आप 4 घंटा सोते हैं, 5 घंटा सोते हैं, तो आपकी बॉडी को ज़रूरत हो सकती है, होती है. और स्पेशली जब आप ज़्यादा काम करो, मेरी बॉडी को भी होती है. तो फिर उसका सिंपल सॉल्यूशन है, अगर मेरे पास नींद के लिए समय कम है, मैं मेडिटेशन करूँगा, प्राणायाम करूँगा. अगर मैं मेडिटेट करके स्लीप ले रहा हूँ तो मेरी 2 घंटे की स्लीप में 4-5 घंटे का काम हो जाता है. तो मैं वहाँ टाइम बचा सकता हूँ. सो अगर मुझे एक एक्स्ट्रा, मैं आपको बताता हूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस था. जो मैं पूना गया था, पुणे अपने सीए स्टूडेंट्स की एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी कुछ साल पहले. 5-7 हज़ार बच्चे आए हुए थे. तो किसी एक बच्चे ने ऐसे ही सवाल पूछा था कि सर आप तो बड़े सक्सेसफुल हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है, डिग्री भी आपको मिल गई, पैसे वैसे भी आपने कमाए होंगे, ज़िंदगी में कोई चीज़ की कमी रह गई क्या आपके पास? ऐसी कोई चीज़ है जो आपने अब तक नहीं कमाई हो, आपको चाहिए? और मैंने उनको ये कहा यार बस मेरी एक ही लाइफ में कमी है कि दिन में 24 ही घंटे, 30 होते तो ज़्यादा बढ़िया रहता. लेकिन वो सभी को 24 है. अब उन 24 घंटों को आप कैसे यूज़ करते हैं, एक. और दूसरा क्या है, लाइफ में हर आदमी की प्रायोरिटी है. किसी को 6 घंटा गोल्फ खेलना टाइम वेस्ट लग सकता है, और किसी को लगता है ये जो 6 घंटे में गोल्फ खेल रहा हूँ यही मेरी लाइफ है, बाकी तो सब बकवास है. करेक्ट. सो आप अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड कीजिए, आपको जो चीज़ में मज़ा आता है वो डिसाइड कीजिए, और एक्स्ट्रा अगर कोई टाइम मिले तो आप वही चीज़ करिए जो बाकी 24 घंटे करने में मज़ा आ रहा है, उसी को करिए, नया कुछ मत करिए. सर, आई वॉच यू रेगुलरली एंड जो मज़े में आप करते हैं, तो मेरा तो जब आप जय हिंद करते हैं तो मेरा फिर ऑफिस चालू होता है. थैंक यू सर. आई बिलीव ये फ्रेटर्निटी ऑल्सो शुड बी अ वेल्दी कम्युनिटी, वेल्दी. सो हम लोग ज़्यादा फंडामेंटल पे जाने हैं. तो डू यू बिलीव दैट वी सीएज एज अ होल वी लैक्स दैट इंट्यूशन एंड गट फीलिंग? बिकॉज फंडामेंटल एनालिसिस, आई डोंट थिंक फंडामेंटल एनालिसिस से मार्केट चलता है, दैट इज माई बिलीफ. सो ये गट फीलिंग या सब इंट्यूशन, ऑल दिस थिंग्स बाय आवर ट्रेनिंग, डू वी लैक दैट? डू यू बिलीव इन दैट? सर देखिए क्या है, गट फीलिंग और इंट्यूशन पे आप 1 बार 2 बार 5 बार सही पढ़ सकते हैं, लेकिन वो गट और इंट्यूशन
आपके अंदर सही आए, आपका गट, आपका इंट्यूशन कौन जनरेट कर रहा है? योर ब्रेन, राइट? एंड वॉट एवर इनपुट यू गिव टू योर ब्रेन, इट वुड जनरेट योर इंट्यूशन अकॉर्डिंगली. अगर आप सीए नहीं है तो आपकी ब्रेन अलग तरह के इंट्यूशन आपके लिए जनरेट करेगी. करेक्ट? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. सो माई सेंस इज, आपकी जितनी आप पढ़ाई करेंगे, रिसर्च करेंगे, आपकी ब्रेन उस हिसाब से आपको जनरेट करने लगेगी. जितना आप ये कहेंगे यार मुझे क्यों पढ़ना है, मार्केट तो ऐसे ही चलता है, ऊपर नीचे होता है, ये सब है, मैं तो अंदाज से करूंगा, तो आपकी ब्रेन उसी तरह से अकस्टम्ड हो जाएगी. सो आई थिंक ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी, आपको जैसे एनालिसिस करना है करिए, लेकिन 3 तरीके से करिए, चौथे से मत करिए. या तो फंडामेंटल कर लीजिए जो आपको नहीं पसंद है, फेयर इनफ. या तो आप टेक्निकल कर लीजिए, चार्ट्स वगैरह. या तीसरा आपका डेरिवेटिव्स का एफएनओ डेटा के बेसिस पे. चौथा कोई ये कहे कि मैं एस्ट्रोलॉजी से करूँगा. मैंने एक पोपट रखा है, वो रोज चिट निकालता है. या कोई कभी कभी आता है कोई आपको, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल एस्ट्रोलॉजर्स, कभी कभी बोलता है कि देखो मैंने ये बोला था. कई बार आप बाकी छोड़ो, हमारे ऑफिस में न्यूज़ रूम में कभी कभी बोला, अरे सर देखो आज मैंने बोला था निफ्टी 24,300 पे ही बंद होगा. मैंने कहा वेल डन, वेरी गुड बॉय, बहुत अच्छा. बता कल कहाँ बंद होगा? 2 दिन तो कंटिन्यू सही पढ़ ले यार, हैट्रिक तो लगा 3 दिन की. सो पॉइंट है कि आप जो भी एनालिसिस करें, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ. आपकी पढ़ाई के दम पे होना चाहिए. कोई सही नहीं है, कोई गलत नहीं है. बाकी रहा सवाल ओवरऑल मार्केट का, सर सॉरी टू डिसएग्री विद यू, मार्केट चलते तो फंडामेंटल पे ही है. एंड ऑफ डे तो फंडामेंटल पे ही चलेंगे. आप किसी भी स्टॉक का 10 साल का प्रॉफिट का ट्रैक रिकॉर्ड निकाल कर देख ले, कोई HDFC बैंक को उठाकर उसकी 10 साल की स्टॉक प्राइस निकाल दे, आपको सेम डायरेक्शन में मिलेगी. 10 दिन का, 10 हफ्ते का, 10 महीने का अलग हो सकता है, लेकिन 10 साल का निकालेंगे तो वही मिलेगा. सो लॉन्गर रन में तो मार्केट हो, इकोनॉमी हो, सेक्टर हो, स्टॉक हो, वो फंडामेंटल पे ही चलता है. शॉर्ट टर्म में तो हर रोज, अब पॉइंट वही वाला जो मैं बता रहा था, अगर आज HUL गिर गया तो कौन सा आपने सोप शैम्पू खरीदना बंद कर दिया, कम कर दिया? वही सब HUL चल रहा है. लेकिन वॉर है, सिचुएशन ऐसी होती है, इमोशंस ऊपर नीचे होते हैं तो प्राइसेस ऊपर नीचे हो जाती है. सो आई थिंक जो आपको ठीक लगे उसे फॉलो कीजिए. जी सर, आपके लिए, आप काफ़ी लोगों के लिए रोल मॉडल हो, आपका रोल मॉडल कौन है? माई रोल मॉडल इज़ माई मदर. माई मदर. तो मेरी मदर टीचर थी, हेड मिस्ट्रेस थी, मतलब रिटायर हो गई, अभी है मेरी मदर लेकिन रिटायर हो गई. तो उन्होंने, जब कभी मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं बहुत काम कर रहा हूँ, तो हमारी एक मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग थी. हम 5 भाई बहन थे, हमारे रियल ब्रदर. जॉइंट फैमिली काफ़ी बड़ी होती थी. तो मैंने मेरी मदर को देखा कि सुबह 7 बजे वो स्कूल के लिए निकल जाती थी, साइकिल पे जाती थी एक ज़माने में स्कूल राजस्थान में. और जाने के पहले हम 5 बच्चों को उठाकर नहला धुलाकर तैयार करके स्कूल के लिए, सबका इतना सारा खाना बनाकर, फिर वो जाती हैं, वापस आएंगी, वो सब करेंगी. तो हमने देखा यार जो इन्होंने किया है उसके सामने हम क्या कर रहे हैं? हम तो बड़ी लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, क्या मेहनत की हमने? कुछ भी नहीं की. सो मैं सोचता हूँ कि शायद हमें थोड़े उनको देख देख के, कई बार क्या होता है लाइफ में, आप बहुत सारी चीज़ें किसी के कहने से नहीं सीखते हैं, किसी को करते हुए देखते तो सीखते हैं. राइट? मैं आपको रोज़ बोलूँ कि आप ये करो, ये करो, ये करो, बोले यार बोलता होगा. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन आपको मज़ा आएगा. अगर आपको है ना, ये आप अपनी पर्सनल लाइफ में प्रैक्टिकली इसको उतार सकते हैं. जैसे हम न्यूक्लियर फैमिली में, मैं, वाइफ और 2 बेटे हैं. जब छोटे थे रोज़ सुबह उठ के हम उनको बोले बच्चे उठो उठो जल्दी, ये वो, चलो उठो. बड़ी मुश्किल से बच्चे उठेंगे, अपने तरीके से उठेंगे, चलो जय जिनेंद्र करो, पैर छुओ. किसी दिन नींद उनकी ठीक हुई तो पैर छू लेंगे हंसते हुए, नहीं तो 7 दिन में से 1 दिन हंसते हुए, 5-4 दिन तो ज़बरदस्ती पैर छुआना पड़ता है, जैसा ऐसा पैर छू के हम पे एहसान कर रहे हैं. राइट? नहीं छुएंगे. यही हम राजस्थान जाते हैं दिवाली पर, हमारी जॉइंट फैमिली 40 फैमिली मेम्बर एक साथ इकट्ठे होते हैं. और एक बार दिवाली के दिन देखा, मेरे बच्चे 6-7 साल के बच्चे होंगे, और बिना किसी के कहे कूद कूद के सबके पैर छू रहे हैं. मेरे 34 हो गए, मेरा 35, तेरा कितना हुआ? दे आर काउंटिंग अमंग ऑल कजिन्स.
उस दिन बात समझ में आई। यहाँ तो हमने नहीं बोला उसको पैर छुओ, दादा के दादी के, लेकिन उन्होंने देखा कि पापा भी दादा दादी के पैर छू रहे हैं, मम्मी भी छू रही है, काका पापा के छू रहे हैं। दिस इज़ द कल्चर। यू डोंट प्रीच, यू प्रैक्टिस इट। अगर मैं सुबह उठ के 5 मिनट भगवान का नाम लूँगा तो मैं मेरे बच्चों को कह सकता हूँ, उसके बाद वो लेंगे नहीं लेंगे सेकेंडरी बात, लेकिन अगर मैं नहीं करता और मैं उनको बोलूँगा तो वो तो पक्का ही नहीं करेंगे। इसलिए सर कई बार क्या चीज़ें होती है कि हमें हमारे पेरेंट्स को करते हुए जो हमने देखा वो चीज़ें हमारे में आती है। उन्होंने कभी थोड़ी बोला है। आज भी जब मैं जाता हूँ तो मेरी मम्मी यही हमेशा यही बोलती है कि तू थोड़ा कम भागा कर, बहुत काम करता है, कम कर कम कर। मैंने कहा आपने सिखाया है, आपको देख के सीखा है। चुप हो जाती है। सो ये रोल मॉडल मेरे लिए तो मेरी माता जी हैं। थैंक यू। हेलो सर, आजकल एआई का बहुत बोलबाला चल रहा है। एआई इज एक्सपेक्टेड लेबर इंटेंसिव से हम लोग अभी टेक्नोलॉजी ड्रिवन पे जा रहे हैं। तो एंथ्रोपिक ने देख रहा हूँ कि 2700 एम्प्लॉयज़ है, मगर उसका वैल्यूएशन है जो अपना 5 IT कंपनीज़ के बराबर है, जहाँ TCS के 6 लाख एम्प्लॉयज़ है। ये एआई का इम्पैक्ट IT सेक्टर पे कैसे पड़ रहा है सर, और इसका इंडिया पे कैसे ये हो रहा है? बहुत अच्छा सवाल है सर, थैंक यू। देखिए क्या है, आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि टेक्नोलॉजी के मामले में एक ही चीज़ कांस्टेंट है कि ये हर वक्त बदलती है, हर वक्त डिस्ट्रप्शन आते हैं। मैं जब स्कूल में कॉलेज में था तब कंप्यूटर्स आने लगे थे, शायद CA के वक्त आए थे जस्ट जब हम CA कर रहे थे, और तब स्ट्राइक्स होती थी गवर्नमेंट कंपनीज में, बैंक्स में। तब तो प्राइवेट बैंक्स भी नहीं होते थे। कंप्यूटर नहीं चलेगा हमारे बैंक में, कंप्यूटर आएंगे हमारी नौकरियां खा जाएगा, हमारे को जॉब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज एक बैंक एम्प्लॉय का आप इंटरव्यू करो, उसको बोलो तुम्हें कंप्यूटर नहीं दिया जाएगा, काम कर तू ऐसे बिना कंप्यूटर के, वो आएगा ही नहीं आपके यहाँ जॉब करने। और तब से लेके बैंकिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी हो गई, कितने नए जॉब्स आ गए। सो हर टेक्नोलॉजी आपके साथ प्रॉस्पेरिटी लाती है। इंटरनेट आया तब भी लोगों को बड़ा, और इंटरनेट आ गया अब तो किसी चीज़ को कोई ज़रूरत नहीं है। कई सारे बिजनेसेस, कोई जेरोक्स, कोई फैक्स, कोई टेलीग्राम, ये सब बंद हो गए। नए भी तो खुले हैं कई सारे नए तरीके का। तो सर टेक्नोलॉजी में जहाँ चैलेंजेस हैं वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। तो एआई में कुछ चैलेंजेस ऐसे हैं, कुछ बिजनेसेस बंद हो जाएंगे, ऑब्सोलीट हो जाएंगे, जिसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे याद है ज़िंदगी में जब नया नया पेजर आया था, मैं यहाँ पेजर लगा के चलता था, और अगर मैं ऑफिस में भी बैठा हूँ कोई दोस्त बोला अरे तू पेजर कर लेना, मैं तेरे को जवाब दे दूंगा। उस समय पेजर बहुत बड़ी बात लगती थी। मोबाइल आया तो हम कोशिश करते कि सबसे बड़ा मोबाइल कहाँ है वो लें, छोटा लेने के बाद। आज आप सब लोग सबसे छोटा ढूंढते हैं ताकि दिखे सबको कि हमारे पास इतना बड़ा मोबाइल है। पॉइंट ये कि टेक्नोलॉजी के साथ जो एडवांसमेंट होते हैं, वो एडवांसमेंट आपके लिए नई चीज़ों की एक अपॉर्चुनिटी लाते हैं। अब जिसने ये एडेप्ट कर ली वो बच जाएगा, जिसने नहीं की वो निपट जाएगा। अब रहा सवाल हमारी IT कंपनियों का, कितनी करेगी कितना नहीं करेगी ये वक्त बताएगा सर। लेकिन अगर आपको अपने आप पे भरोसा है, हमारे इंडिया की ब्रेन पर भरोसा है, तो मुझे नहीं लगता है बॉस कि इंडिया वाले इतने हम बेवकूफ़ हैं कि हम समय के साथ बदल नहीं सकते हैं। अगर हमने इंडिया होते हुए अमेरिका, यूरोप, ऐसे बड़े बड़े देशों को हमने ये बता दिया कि ये सारे काम हम कर सकते हैं, तो आगे भी कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इट्स मैटर ऑफ टाइम कि कब ये ठीक होता है, बट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। We can have a huge round of applause for our President sir and Vice President sir here, and I would request Secretary Bishan Shah ji to formally give vote of thanks for this session. Thank you very much, respected President of ICAI and respected Vice President of ICAI, all the dignitaries being over here. First and foremost, I express my sincere gratitude to our esteemed speaker, Anil Singhvi sir, whose deep insights into capital markets, economic trends, and financial governance enlighten all of us today. Your ability to translate complex market dynamics into practical perspective for professional is truly commendable. Sir, I remember the quote of Warren Buffett, "The stock market is a device for transferring money
from impatient to the patient, and that is what you truly said to all of us. And I can also say the insight you said that today is the entry point is correct for all of us. Thank you very much everyone for gracing these, and thank you sir. Thank you Kushal Bhai for wonderfully moderating the session. Thank you. We are immediately starting our next session with this. Thank you very much.